तो ओके। देन जब वो गया वहां से उठ के स्टेज पे एंड वी आर क्लैपिंग फॉर हिम, तो आई थॉट कि सिर्फ 4 कदम की दूरी थी। अगर इफ आई कुड हैव वर्कड हार्ड तो मैं भी ये खत्म कर सकता था 4 कदम की दूरी। व्हाट वाज योर मोटिवेशन फैक्टर? मैम मेरा पहला मोटिवेशन तो मेरे फादर ही थे ऑब्वियसली। Surinder, when it comes to personal interview, you have gone through a lot of personal interview, some good, some bad, जहाँ पे आपसे काफ़ी ड्रिलिंग क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। ही वाज लाइक कि सुरेंद्र आई विल टेल यू वन थिंग कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम जिंदगी में कभी अफसर बनोगे। अभी सीडीएस के एग्जाम के अंदर 1 महीना है, एंड व्हेन इट कम्स टू सीडीएस एग्जाम, इन आपका एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी क्या था? टारगेट स्कोर आप कैसे लेके चले? किन बुक्स एंड रिसोर्सेज को आपने यूज किया? Hello everyone, welcome back to Defense Roger, and I hope you're doing well. My name is Sheetal Yadav, and there is an announcement to be made regarding a long-awaited camp by the Force Defense Academy, Indore. They are conducting a 5-day SSB camp, this time for serious candidates only, which is starting from September 25th in Indore for just 3,000 rupees. You will get assessment from expert faculty, which are ex-board members, including Colonel Manoj Burman sir. He's an ex-psychologist. Captain Satish Yadav sir, he's an ex-interviewing officer, and Commander Somal sir, he's an ex-GTO. Along with that, you will get a comprehensive assessment and feedback to improve your SSP performance. Limited seats available, first come first serve basis. So register now by the given link in the description box, and you can contact them for any query by the number given below. Coming back to our video, we have Surendra this time. He is a 6-time recommended candidate with a remarkable journey, and he has given all the written entries from CDS IMA, OTA, AFCAT, and Indian Coast Guard. Along with that, it was a 12-attempt journey. He has experience from screen out to conference out, and from merit out to medical out. We have tried to cover all different kind of scenarios in this video. I hope it is going to help you. Without any further delay, let's go back to the video. Hi Surendra, welcome to the platform, and thank you so much for joining me because आपकी जो journey रही है, I think you have experienced everything. I mean, 5 recommendation to getting screen out, conference out, medical out, merit out. I think documentation out ही रह गया है जो आपने experience Yes, नहीं किया. ma'am. And I'm sure आपकी journey काफी helpful रहेगी. So thank you so much for joining me. थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी हियर। बेसिकली जर्नी हैज बीन लॉन्ग, बहुत लंबी जर्नी रही है। स्टार्टिंग विद माय फर्स्ट अटेम्प्ट टिल नाउ इट हैज बीन 10 अटेम्प्ट्स। Right. एंड स्टार्टिंग में लाइक आई गिव एनडीए अ फ्यू टाइम्स बट वो Mm-hmm. क्लियर नहीं हुआ रिटर्न, सो आई Mm-hmm. हैड माय मोटिवेशन कि आई जस्ट डू यूपीएससी, आई डू सिविल सर्विसेज, आई वोंट गो फॉर डिफेंस अगेन। Okay. बट देन लाइफ में समथिंग हैपेंड, पर्सनल थिंग्स हैपेंड, एंड Mm-hmm. सडनली आई माय फ्रेंड्स टोल्ड मी कि चलो एक बार एफकैट दे के आते हैं। So Mm-hmm. like 20 days before AFCAT, I started preparing for AFCAT. I gave AFCAT, फिर then it became a long journey. 10 attempts, 5 recommendations. उसके साथ I've seen all. I've seen screen outs, I've seen conference out, I've seen batch washouts also from Guwahati. Okay. I've seen recommendations, I've seen merit out, I've seen medical out also. So Mm-hmm. finally I've got merit in, तो वो पूरा cycle complete हो गया है मैम। And Okay. if I would tell you about my attempts from my first attempt, तो मैम पहला attempt was in Gandhinagar. It was 2023. It was FCAT 1 of 24. So Mm-hmm. ma'am, I went to Gandhinagar with no expectations. I consulted few of my seniors. उनने बोला कि यार go with the flow. Be yourself. Don't try to okay, imitate anyone or do anything different. मैम मैं गया, आई थॉट कि फौज खड़ी होगी माला लेके कि आओ बेटा तुम्हें अफसर बनाएंगे। सो आई वेंट देयर, आई गिव माई बेस्ट बेसिकली, बट आई हैड नो आइडिया केसेस में होता क्या है, about the psychological testing. I was good in speaking, so I just saw few of the YouTube videos. उसमें they told me कि just be yourself and write positive stories. So I wrote a positive story. I narrated it well. So I got screened in as a fresher. I got screened in, and उसके बाद I had no idea. I remember शाम को I went to my accommodation and I was asking everybody कि psych test में होता क्या है, and everybody is telling me कि बेटा उधर words आएंगे, you have to write sentence and everything. I did my psych test and I messed it up. Mm-hmm. एंड उसके बाद में इंटरव्यू में भी व्हेन आई वेंट फॉर माय इंटरव्यू आई वाज नॉट एबल टू आंसर एनीथिंग। उन्होंने Mm-hmm. बहुत सारे क्वेश्चन पूछे फैमिली से रिलेटेड, आई वाज नॉट एबल टू आंसर। सो आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट इवेंचुअली। बट मैम ड्यूरिंग द लाइक रिजल्ट, तो मेरा एक दोस्त था अनुराग पालावत, ही गॉट रिकमेंडेड दैट टाइम। तो Okay. देन जब वो गया वहां से उठ के स्टेज पे एंड वी आर क्लैपिंग फॉर हिम, तो आई थॉट कि सिर्फ 4 कदम की दूरी थी। अगर इफ आई कुड हैव वर्कड हार्ड तो मैं भी ये खत्म कर सकता था 4 कदम की दूरी। देन आई थॉट दैट आई विल प्रिपेयर अगेन। तो उसके बाद मैं स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर रिटर्न अगेन, पूरा एफकैट एंड सीडीएस। एंड उसके बाद में आई क्लियर्ड ऑल द एफकैट एंड सीडीएस दैट आई गिव। बट उसके बाद में भी देयर वाज वन कॉन्फ्रेंस आउट फ्रॉम गुवाहाटी। उसके बाद में आई वाज स्क्रीन्ड आउट फ्रॉम इलाहाबाद, प्रयागराज। दिस वाज सीडीएस ओटी अटेम्प्ट। Mm-hmm. एंड उसके बाद में दिस वाज 2 of 23, सीडीएस 2 of 23। एंड उसके बाद में आई लाइक कंसल्टेड अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स। मेरा एक दोस्त था, ही वाज 4 times रिकमेंडेड दैट टाइम। तो Okay. उसको मैंने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग डिफरेंट जो मैं नहीं कर रहा। तो ही टोल्ड मी कि यार खुद से मेहनत तो करनी पड़ेगी।
लाइक आप कोचिंग कहीं से भी लेके आते हो, बट दैट डजंट मैटर कि आपके ऊपर उन्होंने जादू कर दिया है बेसिकली। आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तो काम होगा नहीं। तो आई स्टार्टेड लाइक देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई साइक अगेन। मैंने हम्म, पूरी एक बुक बनाई साइक के लिए, फोटोज चिपका चिपका के, एक्शंस लिख लिख के पूरी। देन आई मेड अ बुक फॉर माई इंटरव्यू ऑल्सो। एंड मेरे दोस्त थे मैम, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं तीन, थ्री ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स जो मेरे एसएसबी वाले बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तुषार अग्रवाल, आदित्य और वर्षा। हम तीनों मैम रात को बैठते थे 10 बजे के बाद में, लाइक गूगल मीट के वीडियो पे, एंड वी यूज टू डिस्कस कि किस फोटो में क्या एक्शन लिख सकते हैं एवरीथिंग। सो उस हिसाब से वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। ओके, इंटरव्यू के लिए भी डिस्कस अलॉट कि कैसे वी कैन राइट मोर थिंग्स अबाउट फैमिली फ्रेंड्स, क्या क्या हो सकता है, एंड मिला जुला के वी मेड अ पूरा खिचड़ी उसमें। एंड आई वेंट फॉर माई एसएसबी देहरादून में, एंड इंटरव्यू वेंट वेल, साइक ऑल्सो वेंट वेल। एंड उसके बाद में आई गॉट रिकमेंडेड फॉर माई फर्स्ट वाह, टाइम। एंड उसके बाद में दिस वाज माय फर्स्ट रिकमेंडेशन, दैट वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट। हम्म, एंड उसके बाद में टू कोस्ट गार्ड, वेरी ओवर कॉन्फिडेंट कि अब तो मैं पीआर हूँ, मुझे कौन ही बात करेगा। हम्म, वेंट देयर विदाउट एनी प्रिपरेशन एंड आई गॉट कॉन्फिडेंस आउट फ्रॉम देयर। उसके बाद में आई वेंट टू जलंधर, आई गॉट रिकमेंडेड अगेन फॉर सीडीएस ओटीए। उसमें आई गॉट मेडिकल आउट, एंड फॉर द माई फर्स्ट अटेम्प्ट एफकेट आई गॉट मेरिट आउट। ओके, एंड उसके बाद में आई वेंट फॉर देहरादून अगेन फॉर माई एफकेट अटेम्प्ट। दिस टाइम आई हैड ग्रेट मार्क्स, आई हैड 192 मार्क्स इन एफकेट। आई हम्म, वेंट देयर, आई गॉट स्क्रीन्ड आउट अगेन। तो उसके बाद में इट वाज अ वेरी बिग ब्लो। उस टाइम आई हैड लाइक ऑन द न्यू ईयर्स डे आई हैड नथिंग। 16th दिसंबर को आई गॉट दिस स्क्रीन आउट फ्रॉम देहरादून। 18th दिसंबर को आई गॉट मेरिट आउट फ्रॉम एफकैट। उसके अगले वीक के फ्राइडे को आई गॉट मेडिकल आउट फ्रॉम सीडीएस ऑल्सो। तो ऑन ओके, 31st दिसंबर आई हैड नथिंग, बैक टू जीरो, दो रिकमेंडेशन दोनों खत्म। सो देन लाइक इट वाज अ बिट थोड़ा डिफिकल्ट फेज, फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प करी। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग। उसके बाद मैं स्टार्ट वर्किंग, उससे पहले आई वाज नॉट वर्किंग। तो आई स्टार्टेड टीचिंग मैथमेटिक्स टू स्टूडेंट्स एक अकेडमी में दिल्ली में ही। हम्म, एंड उसके बाद में मैम देख उसके बाद में देयर वाज अ हैट्रिक ऑफ रिकमेंडेशंस। इट वाज फ्रॉम भोपाल 22 एसएसबी सीडीएस ओटीए, then it was coast guard selection board noida, and हम्म, recently on the 1st of august it was 5 efsb guwahati। तो हम ओके, तीनों में रिकमेंडेशन, एंड भोपाल वाले में आई गॉट मेरिट इन ऑल्सो, आई गॉट हम्म, AIR 129। हम्म, तो ओटीए के लिए इट हैज बीन फिक्स्ड कि हम जाना ही है ओटीए। एंड बाकी सब इट हैज बीन, so it has been a very like topsy turvy journey from the starting okay. onwards. That is It's very just the whole modest of you saying all those recommendations. But Surinder, you were saying that ND के attempts देने ये हुए, then you were doing graduation. And yes then ma'am. you were in a hustle of back to back going to SSB. Your journey was really getting started. फिर आपने वापस से चीज़ों को शुरू किया. But what was your motivation factor? Because ultimately it must have started from somewhere or maybe with some meetup या आप किसी से इंस्पिरेशन लिया होगा या कई मूवी से भी लक्ष्य बॉर्डर काफी सारी मूवीज है लोग उनसे भी इंस्पायर होते हैं. सो व्हाट वाज योर Yes मोटिवेशन फैक्टर? मैम, मेरा पहला मोटिवेशन तो मेरे फादर ही थे ऑब्वियसली। लाइक ओके. बचपन से आई बीन लिविंग इन नेवी नगर, दैट्स इन हम्म, मुंबई। तो हम्म, बचपन से लिविंग इन नेवल रेसिडेंशियल बेस, तो पापा को हमेशा देखा है यूनिफॉर्म पहनते हुए, एंड आई सीन हिज फ्रेंड्स आल्सो। और जो बेसिकली जो अमेलगेमेशन है यहाँ पे कल्चर का, मैंने वो बहुत देखा कि लोग बहुत प्यार से रहते हैं सबको एक जैसा। तो आई ऑलवेज हैड द फीलिंग कि मेरे को इसी ऐसे ही बैकग्राउंड में वर्क करना है हमेशा लाइफ में। एंड देन आई हैड अ मोटिवेशन कि आई विल जॉइन नेवी। हम्म, बट अल्टीमेटली क्योंकि एनडीए दिया वो हुआ नहीं बेसिकली। एंड देन बिकॉज आई वाज रियली बैड इन साइंस, आई टुक पीसीएम विद कंप्यूटर साइंस इन माय क्लास 10th। ओके, फुल मोटिवेशन की एनडीए देना है बिकॉज में मैथ्स बहुत हैवी आती है क्लास 11 12 की। तो हम लोग मैथ्स लेंगे और एनडीए करेंगे, बट वो हुआ नहीं, बेसिकली क्लियर नहीं हुआ मेरे से। आई हैड गुड इनफ मार्क्स, बट फिर मैंने सोचा कि आई विल जस्ट स्विच माई स्ट्रीम। तो हम्म, इसके पीछे दो मोटिवेशन थे। वन वॉज कि एक तो साइंस पढ़नी नहीं थी, साइंस से दूर भागना था कुछ भी करके। तो पापा ठीक. को बहुत कन्विंस किया, पहले कन्विंस हुए नहीं ऑब्वियसली, दे सेड कि बीटेक कर लो, इट्स अ बेटर ऑप्शन। बट फिर बहुत कन्विंस किया उसको, देन दे गॉट कन्विंस, दे सेड कि आप अपना बैकअप लेके आओ पहले कि आप क्या करोगे अगर आर्ट्स आप करते हो तो। सो आई सर्च्ड कि व्हाट पीपल फ्रॉम आर्ट्स डू इन देयर लाइफ। आई हैड नो आइडिया अपार्ट फ्रॉम डिफेंस की करना क्या होता है। तो आई गॉट टू नो अबाउट यूपीएससी कि आईएएस आईपीएस भी लोग बनते हैं। तो मैंने बोला कि ये बैकअप पापा को समझाऊंगा तो मान जाएंगे। तो ओके. देन मैंने पापा को समझाया कि पापा हम यूपीएससी कर लेंगे आर्ट्स के बाद में, इट इज अ गुड ऑप्शन, इससे उसका जीएस में हेल्प भी हो जाएगा। तो माय सोल मोटिवेशन वाज कि अगर डिफेंस नहीं होता है तो आई विल डू यूपीएससी। ओके. आई वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई टुक हिस्ट्री ऑनर्स। अब हम्म, हिस्ट्री ऑनर्स का एक तो फायदा हुआ कि मैम जो जीएस हमारा सीडीएस में आता है उसमें बहुत हेल्प हो गया। तो मेरे को हाँ. हिस्ट्री वापस पढ़नी नहीं पड़ी कभी भी वापस, तो मैंने कहीं अलग से हिस्ट्री पढ़ी नहीं। हम्म, एंड सोल मोटिवेशन वाज दिस। एंड उसके बाद में एक बार वो शुरू हुआ, तो फिर मतलब एसएसबी देता रहा, वो चलता रहा। तो बीच में फिर यूपीएससी दे नहीं पाया इवेंचुअली। लाइक आई रिमेम्बर 17th of June 2024 को मेरा, लाइक 16th of June को यूपीएससी का प्रीलिम्स था, हम्म. एंड 17th June को मेरा रिपोर्टिंग था देहरादून के अंदर। एंड उस टाइम मैं प्रिपेयर्ड अलॉट, बहुत प्रिपरेशन करी थी उस टाइम पे। दिस वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट।
जो मैं ओके। बता रहा था, मैंने प्रिपरेशन करी थी खुद से। तो हम्म। आई इट वॉज वेरी हार्ड टू कन्विंस माई पेरेंट्स कि मेरे को देहरादून जाने दो, मेरे को हम्म। नहीं देना प्रेजेंट। दे हम्म। वर लाइक कि नहीं बेटा, अगर आपने पढ़ाई करी है तो यूपीएससी दे दो, आप 3 अटेम्प्ट दे चुके हो एसएसबी में, इस हम्म। बार भी नहीं होगा तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, आप यूपीएससी दो। बट देन आई, मैंने उनको बिना बताए वेंट टू देहरादून, ओके। एंड आई गॉट स्क्रीनड इन वहां पे। देन आई कॉल्ड हिम कि पापा मैं 5 दिन फोन बंद रहेगा मेरा इसके बाद में। एंड ही वाज लाइक तुम हो कहाँ पे? बोला, मैं देहरादून पहुंच चुका हूँ। अरे वाह। तो ही वाज, उस टाइम ही वाज वेरी एंग्री कि तुमने प्रीलिम्स नहीं दिया। बट इवेंचुअली मेरा माइंडसेट था कि मेरे को डिफेंस में आना है, तो फिर हम्म। मैंने प्रीलिम्स किया एंड आई गिव दिस एसएसबी अटेम्प्ट, एंड उसमें आई गॉट रिकमेंडेड मैम। इट वाज वेरी वेरी बिग प्रेशर कि यूपीएससी छोड़ के आया हूँ, अभी रिकमेंड नहीं हुआ तो पापा और डांटेंगे। ओके। सो इधर कई Yes, बार ma'am. ऐसा होता है ना कि प्रेशर के अंदर आप डेस्परेट होते हो, डेस्परेशन से रिजेक्शन के भी चांस होते हैं, जो मैंने काफी देखा है। उस चीज को कंसाइज करके आपने परफॉर्म कैसे किया, जो देहरादून वाला टेंट था? यस मैम। मैम, जो देहरादून का अटेम्प्ट था 17 जून वाला, उसमें तो आई प्रैक्टिस लॉट। तो ओके। जब मैं वहां पे गया तो फिर वो मेरे को ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा बेसिकली। हम्म। साइक बहुत प्रैक्टिस करी थी, बेसिकली जितनी प्रैक्टिस करी थी मैम, तो उसकी वजह से प्रेशर उतना आया नहीं उस चीज में। ओके। बट आई टेल यू वन अबाउट द प्रेशर वन ऑल्सो। 16 दिसंबर को मेरा अटेम्प्ट था देहरादून में, अगेन हम्म। देहरादून। बट दिस टाइम व्हाट हैपेंड कि हमारी मेरिट लिस्ट आने वाली थी एफकैट की, 1 ऑफ 24 की, एंड आई हैड ओनली 153 मार्क्स के आसपास। सो आई थॉट कि मेरा क्या बोलते हैं, मेरिट आउट हो जाऊंगा मैं। हम्म। एंड मेरा मेडिकल बचा था, एएमबी बचा था फॉर सीडीएस ऑल्सो अगले वीक में। तो आई वेंट टू अ डॉक्टर, मेरे को डीएनएस का टीआर था, आई डिड माई सर्जरी, वेंट टू द डॉक्टर, उसने बोला कि अभी भी आपका नाक टेढ़ा है, तो आप मेडिकल आउट भी हो सकते हो। सो मैं दोनों का प्रेशर लेके देहरादून गया कि एक में तो मेरिट आउट होने वाला हूँ, एक में मेडिकल आउट होने वाला हूँ, तो आई हैव टू परफॉर्म इन दिस और हम्म। एल्स आई हैव नथिंग। तो इतना प्रेशर लेके गया एंड उसमें आई गॉट स्क्रीन आउट मैम। तो हम्म। वो प्रेशर को कोप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक कि जब भी आप एसएसबी जाओ तो बाहर का प्रेशर छोड़ देना चाहिए उन 5 दिन के लिए एटलीस्ट। बिकॉज बिल्कुल। फिर अगर आप 5 दिन में परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो फिर फायदा नहीं है कुछ भी, कि आप बाहर कितनी प्रैक्टिस करके आओ, ये 5 दिन आप नहीं शो कर पाए तो इट इज ऑल नथिंग, बैक टू राइट। जीरो। एंड आई इवेंचुअली केम बैक टू जीरो उसके बाद में। हम्म। तो दिस वॉज द थिंग। तो मैम हम्म। प्रैक्टिस, अगर आप बहुत प्रैक्टिस करोगे तो इट विल हेल्प, मसल मेमोरी में आता है मैम। जितनी प्रैक्टिस करेंगे मसल मेमोरी विल हेल्प यू, स्पेशली इन साइक। हम्म। तो इट हेल्प मी इन द जून अटेम्प्ट मैम। इट वाज अ ओके। लॉट ऑफ प्रेशर इवेंचुअली, बट आई लाइक समहाउ कोप अप विद इट। बहुत प्रैक्टिस करी थी तो उससे हेल्प हो गया मैम। ओके। दिस वाज द थिंग। अभी सीरियस के एग्जाम के अंदर एक महीना है, एंड व्हेन इट कम्स टू यस। सीरियस एग्जाम एंड इफ somebody is in the initial preparation, I mean they struggle a lot in so many ways because पेपर देखने में काफी इजी लगता है, अपीलिंग लगता है, बट आई हैव सीन पीपल नॉट इवन क्लियरिंग अ सेशनल कट ऑफ ऑफ अ पर्टिकुलर पेपर बिकॉज जीएस नहीं निकलता है कई बार, या इंग्लिश में भी कम स्कोर रह जाता है. So you mentioned that you have given all these serious attempts and you've successfully cleared it. तो we'll talk how यस। exactly was your strategy in daily routine में आप कैसे चीज़ों को रिविजन करते थे और कैसे आपने एक एक सब्जेक्ट को टाइम दिया, एंड हाउ डिड यू एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बिकॉज आई हैव सीन दैट पीपल गो थ्रू डिफरेंट वीडियोस मे बी ऑन माई चैनल लेट्स सपोज, सो दे फील लाइक जो इंसान के लिए काम किया वो भी उनके लिए काम करे, बट इट इज नॉट ट्रू इन एवरी सिनेरियो, हर इंसान के यस। उसमें नहीं हो सकता है. आपका एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी क्या था, टारगेट स्कोर आप कैसे लेके चले, किन बुक्स एंड रिसोर्सेज को आपने यूज किया? प्लीज शेयर अबाउट योर रिटन यस। जर्नी. यस मैम। मैम बेसिकली स्टार्टिंग में जब मैंने आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, सो आई लाइक आई सॉ लॉट ऑफ वीडियोस वहाँ पे यूट्यूब पे, एंड एवरीबडी वाज टेलिंग कि एनसीईआरटी पढ़ लो, देन ये बुक रेफर कर लो। बट इवेंचुअली मैम मेरे साथ क्या केस है कि मेरे से बुक पढ़ी नहीं जाती बहुत सारी। तो ओके. मैम 3 तरह के बच्चे होते हैं, एक होते हैं कि जो बुक पढ़ के बहुत बुक पढ़ते हैं वो निकाल लेते हैं एग्जाम। एक होते हैं जो बिल्कुल बुक नहीं पढ़ते, वो बहुत ही ऐसे जेनरल किड होते हैं, वो भी निकाल लेते हैं एग्जाम। एक तरह के बच्चे होते हैं मैम जो बहुत कम पढ़ते हैं, यहाँ वहां से रिसोर्स निकाल के, एंड इवेंचुअली दे ऑल्सो क्लियर द एग्जाम। तो आई बिलोंग टू द थर्ड कैटेगरी मैम। तो मैंने क्या किया था बेसिकली, आई ओनली रिलाइड ऑन यूट्यूब। मैंने ना तो कोई क्लासेस करी अलग से, ना ही कोई बुक यूज करी। तो स्टार्टिंग अटेम्प्ट में बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट सीडीएस, तो मैम 2 पेपर होते हैं हमारे मेनली, इंग्लिश और जीएस। तो आई फोकस की इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स अपन को गेन करने हैं, बिकॉज जीएस इज वेरी ट्रिकी। कभी बहुत अगर अच्छी आ गई जो हमने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, मार्क्स गेन कर लेंगे। बट अगर हार्ड आ गई जो हमको नहीं, हम जो हमने नहीं पढ़ा है, तो उसमें हम लटक भी सकते हैं। तो आई थॉट कि आई विल फोकस ऑन इंग्लिश मोर, कि इंग्लिश से मैक्सिमाइज कर लेंगे अपना स्कोर। सो इंग्लिश के लिए मैम वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड कि देयर अ ब्लैक बुक, आप उसको पढ़ो इंग्लिश के लिए, ग्रामर के लिए। बट मैम मेरे से वो पढ़ी नहीं गई स्टार्टिंग में, तो मैंने उसको रख दिया साइड में। देन आई वेंट टू यूट्यूब। तो अनुराग भैया हैं सीडीएस जर्नी करके, तो यस. उनका एक वीडियो था 60 रूल्स ऑफ इंग्लिश। तो वो आज से आई गेस 4 साल पहले का वीडियो है। आई टुक द वीडियो, एंड सिर्फ वीडियो देखी नहीं मैम, बिकॉज मैंने बहुत दोस्त देखे मैंने जो वीडियो देख लेते हैं, एंड देन दे आर लाइक कि अब तो हम कर लेंगे। बट होता नहीं है मैम, उनसे भी, मेरे से भी नहीं होता था पहले। सो आई टुक द वीडियो, आई टुक अ 7 days पूरा गैप।
कि मैं 7 दिन में धीरे धीरे करके पूरा वीडियो देखूंगा। एंड आई स्टार्टेड मेकिंग नोट्स। तो मैंने वीडियो के हर मिनट को पॉज करके नोट्स बनाए अच्छे अच्छे। तो वो 25 पेजेस के नोट्स बन गए अच्छे से पूरे उस वीडियो के। सारे रूल्स उसमें एक्सप्लेन थे वो सब। एंड देन माई स्ट्रेटेजी वॉज कि डेली सुबह उठ के एक बार मैं वो नोट्स को रिवाइज कर लूंगा। तो आधे घंटे में नोट्स रिवाइज हो जाते थे। देन उस पर हाईलाइटर मार्क कर करके पूरा रंग बिरंगा कर दिया बुक को। एंड उसके बाद में माई स्ट्रेटेजी वॉज कि आई गिव मॉक्स, जितने मॉक्स दे सकूं। तो उसका आई स्टार्टेड गिविंग मॉक्स। तो फर्स्टली आई गिव सीडीएस जर्नी के मॉक्स होते थे उनकी वेबसाइट के ऊपर, फ्री ओके। ऑफ कॉस्ट होते थे, तो साइन इन करके वो देना शुरू किया। थोड़े टाइम पे वो खत्म हो गए मैम। उसके बाद थोड़ा अब क्या करें। तो मी एंड माई फ्रेंड तुषार अग्रवाल, हम दोनों ने मिलके टेक्स्ट बुक का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लिया मैम। तो वी थॉट इससे काम बन जाएगा। तो देन वी स्टार्टेड गिविंग दैट मॉक कि आधे मैं देता था, आधे वो देता था, फिर उसको इरेज करके फिर सेकंड हाफ में देता था, फर्स्ट हाफ वो देता था, ऐसे करके वी स्टार्टेड गिविंग मॉक्स। अब मॉक्स में क्या हुआ मैम, जो जो गलतियां हुई बेसिकली उनको भी वी यूज टू राइट। कि इसमें मान लीजिए 10 क्वेश्चन गलत हुए तो उनको लिख लेते थे कि यहाँ पे गलती हुई, तो ये याद रहेगा, कहीं ये क्वेश्चन सेम आ गया तो इट विल हेल्प। तो दिस वे आई लाइक प्रिपेयर्ड फॉर इंग्लिश। उसके बाद में आई गिव पीवाईक्यू ऑल्सो। तो पीवाईक्यू निकाले यूपीएससी की वेबसाइट से उनके 5 साल के पूरे, एंड उनको सॉल्व कर लिया एग्जाम से पहले। तो मैम अलग से कोई बुक यूज नहीं करी, ओनली दीज 25 पेजेस ऑफ नोट्स हेल्प मी इन ऑल ऑफ माई 4 अटेम्प्ट सीडीएस के। व्हेन आई कम टू जीएस मैम, जीएस में आई पिक्ड 4 सब्जेक्ट्स, मेरे फेवरेट 4। हिस्ट्री नहीं चूज किया बिकॉज हिस्ट्री में पढ़ के आया था पहले से, आई थॉट कि हिस्ट्री में संभाल लूंगा थोड़ा बहुत। आई टुक ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस। ओके। ये चारों उठाए मैंने। अब ज्योग्राफी और इकोनॉमी के लिए, दोनों के लिए वापस सीडीएस जर्नी का ही एक वीडियो था। 5 आवर लॉन्ग वीडियो था बेसिकली। सो वही सेम किया मैंने, वीडियो देखा, पूरा नोट्स बनाया उसका अच्छे से। तो आई हैड अ बुक पूरा मोटा सा 300 पेजेस का। उसमें मैंने ऊपर उसके फ्लैग लगा के मार्क कर लिया था कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी करके पूरा। एंड सबके अराउंड 30-35 पेज के नोट्स बन गए पूरे। तो ओके। मैंने उन्हीं नोट को अगेन एंड अगेन रिवाइज किया बिकॉज जितना मेरे को समझ में आया मैम कि इन सीडीएस स्पेशली बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देंगे कि इंडिया का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली है। वो बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन पूछेंगे, लाइक जैसे कि अरेंज दी सिटीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बेसिकली। देन यू हैव टू अरेंज एवरीथिंग, अरेंज द नेशनल पार्क फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट करके। देन यू हैव टू एनालाइज कि कौन सा कहाँ पे था। तो उसके लिए मैम जितना आप रिवाइज करोगे इट विल बी हेल्पफुल। तो राइट। आई थॉट कि मैं थोड़ा कम नोट्स बनाऊंगा, आई वोंट रिफर टू अ लॉट ऑफ बुक्स, बट मैं कम नोट्स में रिवाइज करता रहूंगा। तो अगर मेरे को अपने नोट्स ही रिवाइज है अच्छे से, तो मैं एटलीस्ट एलिमिनेट तो कर पाऊंगा वहां पे ऑप्शंस को। तो इट विल हेल्प मी। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के लिए सीडीएस जर्नी से उनका वीडियो था, वो उठाया, नोट्स बनाया अच्छे से। एंड अगेन सेम थिंग, पहले मॉक दिया सीडीएस जर्नी, देन उसके बाद में टेक्स्ट बुक से, एट लास्ट पीवाईक्यू। ओके। देन आई कम टू साइंस। साइंस के लिए मैम सेम वीडियोस थे, सीडीएस जर्नी के वीडियो थे यूट्यूब पे ही। आई डिडंट टेक देयर क्लासेस एट ऑल, वीडियो से ही देखा। तीनों के लिए वीडियो थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तीनों डिफरेंट डिफरेंट वीडियो थे। वो भी आई गेस अराउंड 2.5 या 3 घंटे के वीडियोस थे पर पर सब्जेक्ट। तो राइट। उनसे नोट्स बनाए अच्छे से एंड अगेन मॉक दिया। व्हेन आई कम टू पॉलिटी, अब पॉलिटी के लिए मेरे को अच्छा वीडियो मिला नहीं उनके चैनल पे। तो आई सर्च फॉर डिफरेंट चैनल, सो आई वेंट टू इनसाइट एसएसबी। तो वो मैम का भी अच्छा वीडियो था, वो भी आई गेस 4.5 घंटे का वीडियो था। उसको भी बैठ के नोट्स बनाए अच्छे से पॉलिटी के। एंड देन आई स्टार्टेड गिविंग मॉक्स। तो इन ओके। सब का ये पूरा स्ट्रेटेजी था। करंट अफेयर के लिए थोड़ा डिफरेंट था मैम। करंट अफेयर के लिए एक चीज है कि मैंने कभी तक आज तक कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा मैम। मेरे को बहुत डर लगता है न्यूज़पेपर से। वो खोलता हूँ, उसमें बहुत सारे एड्स, छोटे छोटे अक्षरों में सारे न्यूज, तो मेरे से पढ़ा नहीं जाता। तो आई ओके। थॉट दैट आई डू समथिंग डिफरेंट। तो मैंने क्या किया बेसिकली, एक तो सीडीएस जर्नी के मंथली मैगजीन आते थे। लाइक वो होता है 28-30 पेजेस का होता है। तो इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड इट आराम से। तो स्टार्टिंग के 3 अटेम्प्ट मैंने वही किया। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी सितंबर में एग्जाम आ रहा है, तो फिर अक्टूबर से अगले अटेम्प्ट के लिए अक्टूबर से मैगजीन उठाई। और उस जिस एग्जाम में मंथ जिस मंथ में एग्जाम है उस तक जितनी मैगजीन थी वो सारी पढ़ ली। उनका पीडीएफ डाउनलोड किया। एंड एक पेज में 4 प्रिंट आउट वाला जो प्रिंट आउट होता है, लाइक एक पेज के अंदर 4 पेजेस का वो कॉलम बना के ओके। प्रिंट आउट लेके, एंड फिर हाईलाइटर लेके उसको घिसता रहता था पूरे दिन उसके ऊपर। तो ठीक है। उससे रिवीजन इजी हो गया। प्लस वो अगर मान लीजिए 20 पेज का वो था पीडीएफ, तो वो कुल मिला के 5 पेजेस में ही आ गया। तो देखने में बड़ा नहीं लगता था कि यार बहुत कुछ पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं था। एंड देन उसको रिवाइज किया बहुत ज्यादा। एंड एग्जाम से पहले अनुराग सर यूज टू गिव दिस पीडीएफ कॉल्ड RRR। सीरीज कॉल्ड RRR। तो वो बेसिकली जो पुराने करंट अफेयर्स थे पूरे 5 महीने के, वो कंबाइंड करके एक पूरा पीडीएफ में दे देते थे। तो ओके। उससे आई यूज टू रिवाइज एग्जाम से पहले। तो करंट अफेयर में तो पूरा यही स्ट्रेटजी यूज किया। एंड ओके। उससे करंट अफेयर वर ऑल्सो फाइन। एंड मैथ्स के लिए अलग से कोई स्ट्रेटजी यूज नहीं किया मैम। मैथ्स के लिए तो मैंने पढ़ाई भी नहीं करी थी अच्छे से कभी भी। इसलिए स्टार्टिंग के 3 अटेम्प्ट में हमेशा ओटीए निकला, आईएमए कभी नहीं निकला। तो फिर मैथ्स में तो मैम जो मैंने बेसिकली अपना 11th 12th में पढ़ा था, उसी को लास्ट में आके इस अटेम्प्ट के थोड़ा रिवाइज किया मैंने, लाइक ट्रिग्नोमेट्री एंड एवरीथिंग। तो उससे थोड़ा हेल्प हुआ, तो इस बार आईएमए क्लियर हो गया।
बट Okay. उससे पहले मैथ्स तो पढ़ा नहीं था मैंने कोई, तो उस पर आई वोंट कमेंट। Okay. एंड फॉर एफकैट मैम, एफकैट के लिए मैंने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई थी। तो एफकैट के लिए आई डिड दिस स्ट्रेटेजी की करंट अफेयर को पहले इग्नोर करते हैं स्टार्टिंग में, बिकॉज क्योंकि अराउंड 75 क्वेश्चन तो स्टैटिक वाले ही थे, इंग्लिश प्लस लॉजिकल रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स। तो Mhm. अगर इफ आई कैन कवर दीज 75 क्वेश्चन अच्छे से, तो मैं अच्छे मार्क्स को मैं कट ऑफ तो क्लियर कर जाऊंगा आराम से। Mhm. तो आई हैड दिस थिंग कि जो जो वीडियो सीडीएस के लिए देखी थी इंग्लिश वाली, सेम नोट्स मैंने इसमें यूज किया अपने एफकैट के लिए, बट इसमें मॉक बहुत इंक्रीज कर दिए बिकॉज थोड़ा सा डिफरेंट आता है इसमें इंग्लिश। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के लिए आई पिक्ड आउट टू वीडियोस फ्रॉम सीडीएस जर्नी ओनली। वन Okay. वीडियो वाज 20 like types of question in mathematics, and one was 25 types of reasoning question in एफकैट। दोनों Okay. मैंने उठाया, मेड पूरा अच्छे से नोट्स, उसके पूरा बुक बनाई उसकी अच्छे से। एंड देन उसके बाद में क्या किया कि नोट्स बना के आई यूज्ड टू रिवाइज देम डेली। Okay. उसके बाद में आई डिड वन थिंग, आई टुक अ स्मॉल पेपर। उसमें मैंने एक तरफ रीजनिंग एक तरफ मैथ्स, उसके फॉर्मूले छोटे छोटे करके लिख लिए, उसको Mhm. जेब में डाल लिया, कभी भी घूमते फिरते अगर मन करता था तो निकाला, देखा, एक बार रिवाइज कर लिया, काम बन गया। एंड Mhm. उसके बाद मैं यूज्ड टू गिव मॉक्स, रेगुलर मॉक्स डेली एक एक मॉक लगा देता था, सेक्शनल मॉक नॉट फुल मॉक। लाइक Mhm. मैथ्स का एक दिन एक लगा लिया, लॉजिकल रीजनिंग का एक लगा लिया। तो Mhm. वैसे करते करते इट बिल्ड माई कॉन्फिडेंस। एंड लाइक करंट अफेयर के लिए अगेन सेम थिंग, उनका मैगजीन था, मंथली मैगजीन। तो फिर मेरे को सीडीएस और एफकेट के लिए करंट अफेयर अलग अलग नहीं पढ़ने पड़ते थे, एक ही साथ दोनों में काम बन जाता था मैम। तो Okay. ऐसे करके आई नेविगेटेड। तो मैम वही था। पर इसमें एक थोड़ा इसमें क्या फॉल्ट ये कह सकते हैं कि इफ यू वांट टू स्टडी थोड़ा ज्यादा थॉरोली, स्पेशली फॉर लाइक गर्ल्स, उनके लिए तो वैकेंसी थोड़ी कमी आती है, तो उनको थोड़ा Mhm. सा इंटरव्यू में फोकस करना पड़ता है। तो उनके Mhm. लिए तो मैम दे शुड लाइक फोकस ऑन देयर एनसीईआरटी और सबका बेस बना के देन दे शुड वर्क अपॉन दैट। मेरे को Right. तो मैम जितने ज्यादा मॉक देंगे उससे नंबर इंक्रीज हो जाता है। फॉर Mhm. एग्जाम्पल मेरे एफकैट जितने भी एफकैट वन होते थे, लाइक फर्स्ट ऑफ द ईयर, वन ऑफ 23 और वन ऑफ 24, मेरे हमेशा अराउंड 160 के आसपास मार्क्स आते थे। एंड टू जो आता था सेकंड एफकैट, उसमें हमेशा 190 के ऊपर आते थे। तो मैम Mhm. देवर थिंक कि मॉक्स हेल्प्स अलॉट। अगर मॉक अच्छे देंगे तो नंबर इंक्रीज हो सकता है इसमें भी। दिस वॉज Mhm. माई होल स्ट्रेटेजी मैम, इसके अलावा मैंने कहीं से पढ़ाई नहीं करी अलग Okay. से। दिस वॉज द होल स्ट्रेटेजी फॉर रिटन एग्जामिनेशन। And like you mentioned, especially for females, the vacancies are really very low. लड़कों का यस मैम। मेरिटिंग का इशू नहीं रहता है, लड़कियों का मेरिट आउट का बहुत बड़ा इशू है। बहुत लार्ज अमाउंट में फीमेल्स मेरिट आउट होते हैं, तो प्रिपेयर यस मैम। एंड strategize your strategy according to your need and requirement. Let's move ahead. You were recommended in one of your attempts, and अगले attempt में you got screened out. What यस exact मैम। preparatory changes you have made? I mean in terms of screening, जिसने आपको हेल्प किया है आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए? मैम स्क्रीनिंग के लिए तो लाइक पहले के दो अटेम्प्ट में तो आई आई डिडंट गेट स्क्रीनड आउट। तो हम्म। उसमें तो आई हैड नेवर थॉट कि मैं स्क्रीन आउट भी होऊंगा कभी। तो मैंने सीरियसली लिया ही नहीं उसको। आई थॉट कि मैं बोलने में अच्छा हूँ, अच्छे नरेशन दूंगा, काम बन जाएगा। हम्म। बट देन इन माई थर्ड अटेम्प्ट आई गॉट स्क्रीन आउट फ्रॉम सीडीएस ओटी। दैट्स माई फर्स्ट सीडीएस अटेम्प्ट। मैम हम्म। उसमें आए बच्चे 52 बच्चे आए थे मैम प्रयागराज में। एंड हम्म। मैम उसमें से भी आई गेस कितने 32 बच्चे स्क्रीन इन हो गए थे, तो जो 20 बच्चे स्क्रीन आउट हुए उसमें मैं स्क्रीन आउट हो गया। तो मुझे हम्म। बहुत दुख लगा कि यार मैं कैसे स्क्रीन आउट हो सकता हूँ। तो देन आई थॉट कि स्क्रीनिंग पे फोकस कर लेते हैं। तो आई मेड अ स्ट्रैटेजी कि एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ओआईआर करते हैं। बिकॉज मैम हम लोग ओआईआर को थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं कि ओआईआर के बारे में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम मेनली पीपीडीटी पे फोकस करेंगे तो उससे हमारा काम निकल जाएगा। बट मैम ओआईआर का जो रैंकिंग होती है इट मैटर्स अलॉट। अगर आपका ओआईआर अच्छा गया है फॉर एग्जाम्पल, तो यू गेट ओआईआर वन रेटिंग। अगर हम्म। थोड़ा उससे कम गया है तो यू गेट ओआईआर टू रेटिंग, देन ओआईआर थ्री। तो अगर मैम फॉर एग्जाम्पल ओआईआर अगर आपका वन आता है तो आपकी बहुत सारी गलतियां माफ हो जाती है थोड़ी बहुत, कि तभी आप स्क्रीन हो जाते हो। बट अगर आपका ओआईआर थ्री आया है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट स्क्रीन इन, जितना मेरे को समझ हम्म। में आता है। तो आई थॉट कि ओआईआर पे आई फोकस अलॉट। मैम फिर टेलीग्राम पे ढूंढा ओआईआर के सेट्स कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, सारे चैनल्स पे डाउनलोड किया, स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग देम। एंड ओके। उसके बाद में एक बुक थी ओआईआर की, वो भी लाइक खरीदी थी बाहर से, उसको भी प्रैक्टिस कर लिया थोड़ा बहुत। तो एक बार ओआईआर सेट हो गया तो अब कॉन्फिडेंट कि ओआईआर में तो गलती नहीं होगी ज्यादा अभी। उसके बाद में मैम फॉर एग्जांपल पीपीडीटी के बारे में अगर बात करते हैं, तो माय स्ट्रैटेजी वाज कि स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है पीपीडीटी का ना, व्हेन वी नरेट राइट। like gentlemen, I have perceived this number of characters, हम्म। gender female, male and male respectively, age and their mood, and उसके बाद में the action of my story is this। इसको तो मैं रट्टा मार लूं अच्छे से, हम्म। बिकॉज अगर इंट्रोडक्शन में इफ आई मैस अप तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है वहां पे। राइट। तो इंट्रोडक्शन को तो मैं एकदम रट्टा मार लेता था मैम अच्छे से। एंड आई यूज टू लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट एनी स्टोरी, तो उसके बाद मैं यूज टू प्रैक्टिस इन नरेशन अलॉट। नरेशन हम्म। करते 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 तो नरेशन का बहुत प्रैक्टिस किया मैम इसके बाद में। हम्म। एंड उसके बाद में वन वन थिंग वाज दैट कि जब मैं स्क्रीन आउट हुआ था मेरे अलाहाबाद अटेम्प्ट में, तो उसमें गलती क्या करी थी, मैंने स्टोरी लिख ली हमने। एंड माय ग्रुप वाज द लास्ट ग्रुप टू एंटर द डिस्कशन हॉल। तो ओके। हमको आधा एक घंटे का बहुत लंबा टाइम मिल गया था, तो हम हम्म। वहाँ बातें कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, घूम रहे हैं पूरे बोर्ड में। आई फॉरगॉट टू रिवाइज माय स्टोरी।
राइट। नरेशन नरेशन के मोड में मैंने रिवाइज नहीं करी। आई वाज दैट मच ओवर कॉन्फिडेंट कि मैं तो जाके बोल ही दूंगा एकदम से अच्छे से। मैंने एंटर्ड द हॉल, आई सॉ द जजेस वहां पे, ऑफिसर्स, एंड जब मेरी बारी आई, आई वाज द लास्ट वन इन द ग्रुप। जब मेरी बारी आई तब तक मैं पूरा डर चुका था कि मेरे को याद ही नहीं आ रही थी स्टोरी, सबकी स्टोरी सुन सुन के, एंड मैंने नरेशन में भी बहुत बड़ा फंबल कर दिया, एंड इवेंचुअली आई गॉट स्क्रीनड आउट। तो राइट। इसके बाद आई ऑलवेज ट्राइड, जब मैं देहरादून गया उसके बाद में, तो जैसे ही हॉल से निकले हम लोग स्टोरी लिख के, उसके बाद में आई यूज्ड टू फोकस कि वहां से जाने तक एंड डिस्कशन हॉल में घुसने तक आई यूज्ड टू कीप लाइक नरेटिंग माई स्टोरी इन माई हेड। मैं किसी से बात नहीं करता था उस टाइम पे, मेरे को था कि दोस्त बनेंगे तो स्क्रीनिंग के बाद बना लेंगे आराम से, लेकिन यहाँ पहले स्क्रीनिंग तो हो जाए हम कम से कम। तो आई यूज्ड टू लाइक नरेट माई स्टोरी कंटिन्यूसली इन माई हेड, यहाँ से वहां, अगेन एंड अगेन, ताकि वहां पे फंबल ना करो। एंड इतना नरेशन के बाद वो मसल मेमोरी में आता था मैम कि यही बोलना है मेरे को जाके। एंड सेकंड थिंग, एक और मैम ट्रिक यूज करी मैंने बेसिकली, तो आई यूज टू राइट 4 5 मैक्सिमम 5 एक्शन इन द स्टोरी। फॉर आई विल गिव यू एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक स्टोरी है, उसमें 2 3 फायर ब्रिगेड के ऑफिशियल्स आग बुझा रहे हैं, एंड दे आर टेकिंग अ पर्सन ऑन स्ट्रेचर, एम्बुलेंस पे डाल के बाहर की तरफ। तो इसमें आई फिगर्ड आउट कि मेरे को एक्शंस थोड़े से वाइड स्प्रेड लिखने पड़ेंगे। तो व्हाट आई डिड कि मैंने बोला कि एक तो अपना जो हीरो है कैरेक्टर का, उसको आई कांट मेक सिंपल स्टूडेंट, बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट क्या ही कर सकता है जाके। तो आई थॉट की जगह हीरो का जो प्रोफेशन है वो सही से चुनना जरूरी है। तो आई टुक फॉर एग्जांपल, मैंने बनाया उसको फायर ब्रिगेड का ऑफिशियल। तो देन आई यूज टू राइट कि 1 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख दिया, उसके बाद में लगातार 4 5 लाइन के एक्शंस, और 1 लाइन में स्टोरी खत्म। उसके बाद में उससे ज्यादा बियॉन्ड स्ट्रेच नहीं करेंगे स्टोरी को। तो मेरी स्टोरी में 8 लाइन में खत्म होती थी, वेरी शॉर्ट स्टोरी। तो इससे क्या होता था कि स्टोरी जल्दी याद होती थी, एंड नरेशन के टाइम पे ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता था। तो बिफोर द असिस्टेंट यूज टू से नेक्स्ट, मैं खत्म कर चुका होता था पहले ही। तो इसमें व्हाट आई डिड, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन दिस स्टोरी, तो फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि रमेश इज अ 22 year old फायर फाइटिंग ऑफिशियल, ही केम टू नो देयर इज अ फायर इन द नियर बाय लोकेलिटी। इतने में इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। नाउ व्हाट ही विल डू नेक्स्ट, ऑल आर देयर एक्शंस। फॉर एग्जांपल, he assembled his team, briefed them about the plan of action, they took the vehicle to the spot, they divided the team, sprinkled water, took the people out, used ambulance to take the injured to the nearby hospital, and they were able to put off the fire. And once everything was done, Ramesh took a sigh of relief, and वहाँ पे story खत्म, nothing apart from this। और actions को मैम आई यूज टू राइट यूजिंग कॉमास, लाइक हर एक्शन में लिखा एंड कॉमा लगा दिया, ताकि लंबी स्टोरी ना हो, हर जगह ज्यादा चीजें ऐड नहीं करनी पड़े। उसके बाद में मैं मैनेज टू गो टू द नरेशन पार्ट, तो बहुत जल्दी नरेशन खत्म हो जाता था। तो एवरीबडी यूज्ड टू थिंक कि जल्दी खत्म कैसे हो गया। लाइक आई वेंट टू देहरादून, तो वहाँ पे हम 16 लोग का ग्रुप था मैम, एंड वहाँ पे आई वाज द लाइक हम 2 3 लोग ही थे जिन लोगों को थैंक यू, दे वर एबल टू से थैंक यू, बिकॉज देहरादून में एक तो बच्चे बहुत आते हैं, लाइक अराउंड 248 बच्चे आए थे वहाँ पे। तो बहुत जल्दी जल्दी चल रहा था सब कुछ, बिकॉज दे हैड टू डू देयर साइक टेस्ट शाम को। राइट। तो जल्दी जल्दी करते करते तो ओनली 20 25 सेकेंड्स में नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तो आई वाज एबल टू कंप्लीट माय नरेशन। तो दैट हेल्प मी अलॉट इन दिस। एंड मैम जो एक्शन पॉइंट है, यूज टू रिमेंबर ऑन माय फिंगर टिप्स। तो जैसे कि आप बैठे हैं तो आप अपने नी के ऊपर अपना हाथ रखेंगे, तो व्हेन यू आर नरेटिंग, तो एक एक्शन हुआ तो 1 2 3 4 5 थैंक यू, तो उससे बोलता नहीं था हम जल्दी। तो दैट हेल्प मी अलॉट। एंड ओके। उसके बाद में मैम जीडी में बेसिकली एक सिंपल स्ट्रेटेजी थी कि 2 2 बार का रूल रखता था, कि 2 बार बोलूंगा पहले नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, फिर 2 बार बोलूंगा थीम के ऊपर, एंड उसके बाद में लगातार एक्शन पॉइंट बोलते रहेंगे। बिकॉज क्योंकि मैम बहुत बड़े ग्रुप में तो बहुत ज्यादा क्योस मचता है, यू डोंट नो कि चल क्या रहा है पूरे ग्रुप में। तो अगर आप सुनने बैठोगे तो आप जीटीओ को लगेगा कि आप चुप बैठे हो, और आप ज्यादा बोलने बैठोगे तो आप कुछ भी बोलते रहोगे, तो उससे भी फायदा नहीं होगा। तो आई आई यूज्ड टू हैव अ स्ट्रेटेजी कि 2 2 बार का स्ट्रेटेजी रखेंगे। 2 बार, एक बार 2 बार बोलूंगा अबाउट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जेंटलमैन वी कैन अज्यूम देयर आर 2 कैरेक्टर्स। 2 बार अबाउट द थीम, एंड देन विल स्टार्ट विद द एक्शन पॉइंट्स। एक्शन पॉइंट बोलते रहेंगे एंड द जीडी विल बी फिनिश्ड। तो उस हिसाब से मैंने जीडी को प्लान किया था आपने, एंड इट हेल्प। उसके बाद में मतलब उसके बाद एक ही बार स्क्रीन आउट हुआ था मैं वापस देहरादून से, वो तो अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, उसके अलावा स्क्रीन आउट तो नहीं हुआ मैम। तो दैट हेल्प अ लॉट। दिस वाज द होल स्ट्रेटजी फॉर स्क्रीनिंग मैम। व्हेन इट कम्स टू साइक टेस्ट, जैसे ही स्टेज 1 टेस्टिंग के बाद स्टेज 2 टेस्टिंग शुरू होती है, साइक के अंदर बैक टू बैक टेस्ट हैं, टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी, एनएसडी। सो यस मैम। एक तो टाइम कंस्ट्रेंट्स इतने कम है, 15 सेकेंड्स में लिखो, 30 सेकेंड पिक्चर दिखाई जा रही है। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर सम ऑफ द कैंडिडेट्स टू मैनेज एंड टू include all the things that they have learned in their यस pictures मैम। and or in their SRTs or WATs. So we'll start with TAT. TAT के अंदर जब यस पिक्चर दिखाई जाती है तो one of the concern that comes is how to put action and how to make a यस। natural story. ये दो चीजें तो आप हमेशा ही सुनेंगे which generally float amongst the candidate. So how exactly you used to put actions and what used to be your mindset कि आप स्टोरी को या पिक्चर दिखाई जा रही है तो किस स्टोरी लाइन के राउंड आप यस। बनाएंगे?
मैम बेसिकली whenever I used to see a photo, तो पहले तो मैंने प्रैक्टिस बहुत करी थी टीएटी के लिए। लाइक Okay. व्हेन आई वेंट टू देहरादून, तो आई आई प्रैक्टिस अराउंड 55 फोटोज। उनका एक फोटो चिपकाया, उसके ऊपर उसके दो थीम लिखे मैंने। एंड Mm-hmm. हर थीम के ऊपर आई यूज्ड टू राइट बुलेट पॉइंट एक्शन। फॉर एग्जांपल किसी फोटो में जैसे पुलिसमैन, Mm-hmm. तो माय मेन स्ट्रेटजी वाज कि वॉट एवर आई राइट इन द स्टोरी, तो उसका जो एक्शन होगा, वो जो हीरो होगा हमारा, उसका प्रोफेशन हर बार स्टूडेंट नहीं बनाऊंगा। बिकॉज पीपल से कि द हीरो ऑफ योर स्टोरी शुड रिवॉल्व अराउंड योर ओन लाइफ, आपकी लाइफ से अपने उससे रिलेशन होना चाहिए। बट आई थिंक कि जो टीएटी में इट्स ऑल अबाउट योर इमेजिनेशन। तो Mm-hmm. जितना वाइड स्प्रेड वी कैन मेक आवर स्टोरी, इट विल हेल्प अस। तो मैं तो मैम किसी स्टोरी में फायरमैन, किसी में फार्मर, किसी में बैंकर, किसी में पॉलिटिशियन, सब कुछ बनाया जाता था। तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई यूज्ड टू सी अ फोटो, तो Mm-hmm. फर्स्ट थिंग मेरा स्ट्रेटजी था मैम, चार वर्ड पे था, PPSS। वन वाज प्रॉब्लम, सेकंड वाज प्रोफेशन, थर्ड वाज सॉल्यूशन, फोर्थ वाज स्टोरी। तो फॉर एग्जांपल व्हेनेवर सी आई सी अ फोटो, तो आई शुड Mm-hmm. थिंक कि आई माय हीरो शुड हैव अ प्रॉब्लम, स्मॉल प्रॉब्लम टू सॉल्व, Mm-hmm. और अ टास्क टू लाइक कंप्लीट। तो इन दोनों में से कोई एक चीज पकड़ के मैं स्टोरी लिख दूंगा। उसके बाद में सेकंड थिंग अबाउट द प्रोफेशन, तो मैम हीरो के जो कपड़े होते थे बहुत अच्छे से आई यूज टू ऑब्जर्व कि कपड़े कौन से पहन रखे हैं। Mm-hmm. बिकॉज इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई डिड अ वेरी बिग मिस्टेक, गलती से स्क्रीन हो गया मैं वैसे। बट इन द फोटो देयर वाज लाइक सम पीपल हु वर टेकिंग अ पर्सन हु वाज इंजर्ड, उनकी गोदी में लेके दे वर टेकिंग टू द हॉस्पिटल। Mm-hmm. पीछे एक कार पेड़ पे लगी हुई थी। तो Mm-hmm. आई थॉट कि तो मैंने ऑब्जर्व ही नहीं किया फोटो को, मैंने बस देखा एक्सीडेंट हुआ है, मैंने लिख दिया कि Mm-hmm. एक बच्चा है हमारा, इसको उसका एक्सीडेंट हो गया है, एंड उसके कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं वो उसको उठा के लेके जा रहे हैं वहां से। बट Okay. मैंने ऑब्जर्व द फोटो, तो उनके कपड़े फटे हुए थे जो उनको उठा के लेके आ रहे थे। किसी ने बनियान पहन रखी थी, किसी के कपड़े फटे हुए थे बेसिकली। तो बेसिकली देवर स्ट्रीट साइड वेंडर्स मोस्टली, एंड Mm-hmm. सबने वही लिखा था मेरे को छोड़ के। मैंने लिखा था देवर देयर प्रोफेसर्स। तो उस टाइम तो फ्रेशर अटेम्प्ट था, तो उन्होंने मेरे को स्क्रीन कर लिया। बट रिपीटर्स में तो ये गलती नहीं कर सकता था मैं। तो देन आई थॉट कि अपन जो उसका जिसका ड्रेस है वो अच्छे से अपन एक बार ऑब्जर्व कर लेंगे। तो थ्री थिंग्स टू ऑब्जर्व, वन वाज द बैकग्राउंड, कि ऐसा ना हो कि वो इंडोर में काम कर रहे हो मैं आउटडोर लिख दूं। तो Mm-hmm. वन वाज देयर बैकग्राउंड, सेकंड वाज देयर एक्सप्रेशन, कि दुखी लग रहा है या खुशी लग रहा है पता नहीं चलता, तो एक बार देख लेना चाहिए अच्छे से। एंड थर्ड वाज देयर कपड़े, देयर क्लोथ्स। इन तीनों के बेसिस पे आई यूज्ड टू फाइंड अ गुड प्रोफेशन फॉर माय हीरो। अब Got एक बार प्रॉब्लम मिल गया, प्रोफेशन मिल गया, देन जैसे कि हम एसआरटी में करते हैं कि हम सॉल्यूशन लिखते हैं एक एसआरटी का स्टेप वाइज। तो आई यूज टू राइट स्टेप वाइज, आई यूज टू थिंक स्टेप वाइज सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए एक फोटो है जिसमें एक बोट है, उसमें एक आदमी बोट को चला रहा है और तूफान आ रहा है, एंड आदमी इज फेसिंग बैकवर्ड्स। तो Mm-hmm. उसमें अगर आप इफ यू डोंट ऑब्जर्व द फोटो केयरफुली, तो बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम फोटो देखी हमने, एंड फोटो देखते वी आर डायरेक्टली गोइंग टू कि आई सेलिंग कंपटीशन चल रहा है, हमारा हीरो सेलर है, उसने ये सब कर दिया, प्रैक्टिस कर ली, सेल कंपटीशन खत्म किया, जीत गए। बट Okay. व्हेन आई ऑब्जर्व द फोटो केयरफुली, जब मैंने प्रैक्टिस करी घर पे, तो आई जूम्ड इन द फोटो अलॉट। तो मैंने देखा भाई साहब ने कुर्ता पहन रखा था, मतलब कुर्ता पहन रखा था, और शॉल रैप कर रखी थी ऐसे करके, और Mm-hmm. साइड से उनकी मूंछ निकल रही थी, और बोट भी टूटी फूटी सी थी। एक छोटा सा पीछे मोटर था, और एक कुछ उनके हाथ में चप्पू या कुछ था, वो चला रहे थे। तो Mm-hmm. आई ऑब्जर्व कि इस पे तो हम लोग सीलिंग कंपटीशन बना ही सकते बेसिकली। तो आई रोटेड कि ये हमारा बोटमैन होगा, बेसिकली फिशरमैन होगा, जो कि बेसिकली समुद्र में फिशिंग करने गया है। तो व्हेन आई पुट इट इन माई पीपीएसएस वाला थिंग, तो प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे कि तूफान आ गया है बेसिकली समुद्र में एकदम से, द वेदर हैज बिकम रफ। प्रोफेशन क्या था, फिशरमैन था। अब Mm-hmm. फिशरमैन अगर फंस गया तूफान में तो क्या करेगा, तो आई यूज टू थिंक अबाउट स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स। जैसे कि पहले वो अपने बोट को थोड़ा बैलेंस कर लेगा, he'll टेक द फिशिंग नेट आउट। जो Mm-hmm. उसने फिश पकड़ी होगी he'll कवर द फिशेज ऑब्वियसली, बिकॉज Right. उसके जो कैचर ऑफ द डे उनको निकाल नहीं सकता। एंड देन ही विल जस्ट बैलेंस हिज बोट, he'll keep himself calm and he'll reroute to the nearest shore। अब नियरेस्ट शोर पे जाके he'll call the marine police कि आई एम सेफ, ये सब वो सब। एंड वंस द वेदर इज फाइन अगेन he'll go back to his village, and then he'll sell the catches of the day and अपना काम खत्म। तो दिस वाज, ऐसा मैं स्टोरी बनाता था, नॉट बियॉन्ड दिस। तो Okay. इसमें पीपीएस करके, तो फर्स्ट इज प्रॉब्लम, second is profession, third becomes solution, solution is stepwise, and when you combine all of these three, it becomes a story. So it's problem, profession, solution, story. This was Okay. my whole strategy. उसके बाद में वन थिंग वाज कि आई यूज्ड टू राइट वेरी लॉन्ग स्टोरी स्टार्टिंग में, लाइक Mm-hmm. 15-15 लाइन की स्टोरी लिखता हूँ स्टार्टिंग में। लाइक स्टार्टिंग के 4 मिनट चलता था कि फर्स्ट में लिख दिया, सेकंड में लिख दिया, थर्ड फोर्थ। उसके बाद में हाथ दुखने लग जाते थे मैम कि अब इससे ज्यादा आगे क्या लिखूंगा, तो फिर इट शुड बिकम शॉर्ट एंड शॉर्ट। आखिर में आते आते वो स्टोरी आती थी 7 या 8 लाइन की। Mm-hmm. देन वन ऑफ माय सीनियर टोल्ड मी कि अपन इसको एक यूनिफॉर्म लेंथ में करते हैं, बिकॉज व्हेन यू राइट अ लॉन्ग स्टोरी इन द स्टार्टिंग एंड शॉर्ट स्टोरी इन द एंडिंग, तो द साइक माइट थिंक कि बंदा एग्जॉस्ट हो गया मेंटली, Mm-hmm. इतना लंबा लिख नहीं पा रहा है। तो फिर मैंने किया कि स्टोरी शुड बी शॉर्ट, तो मैं हमेशा 9 या 10 लाइन की स्टोरी लिखता था स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ठीक है। लाइक कोई 2 लाइन का इंट्रोडक्शन, बाकी एक्शन, एंड एक उसका सॉल्यूशन।
एंड जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करी थी मैम मैंने, फॉर एग्जांपल जैसे कि पुलिस की कोई स्टोरी है एंड आई हैव रिटन सम बुलेट पॉइंट फॉर द पुलिस स्टोरी, अब वो फोटो सेम आई भी नहीं, कोई और फोटो भी आ गई जिसमें कोई यूनिफॉर्म में है, तो आई आई कैन यूज माई दोज बुलेट पॉइंट्स इन दिस स्टोरी ऑल्सो। फॉर राइट। एग्जाम्पल FIR कराना, लॉन्च कराना, तो इट हेल्प मी अलॉट इन माई डिफरेंट, लाइक कोई भी स्टोरी आ जाए, यू शुड राइट अ गुड स्टोरी ऑन दैट। एंड सेकंड थिंग मैम, कभी भी आई यूज टू डोंट गो लाइक बियॉन्ड द स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी थी जिसमें एक बच्चा डूब रहा था, आई टेल यू वन स्मॉल किस्सा फ्रॉम गुवाहाटी बोर्ड, कि एक बच्चा था जिसमें वो बच्चा डूब रहा था और दो लोग बोट में आ रहे थे। तो मेरा स्टोरी सिंपल था कि हम लोग घूमने गए हुए हैं, वी सॉ बच्चा, सो आई विल जस्ट टेक द बोट नियर द बच्चा, आई विल डाइव इनटू द वाटर, take the banda out. I'll just grab my hands around the bacha, put him onto the boat, thump his stomach, take the water out, take him to the nearest shore, and then give him to the authorities. Story खत्म। I ओके। met one of my seniors वहां पे, तो उनसे मैंने पूछा कि आपने स्टोरी कैसी लिखी थी, तो उन्होंने बोला कि मैंने तो बहुत शानदार स्टोरी लिखी थी सुरेंद्र भाई। तो मैंने बोला से हमको भी सुनाइए फिर। तो ही टोल्ड मी कि मैंने लिखी थी कि हम लोग है ना, वो है नेचर एंथुजियास्ट है, हम लोग बाहर गए हैं बोटिंग करने, एंड व्हेन देन आई सॉ बच्चा डूबते हुए, आई डाइव इन द पूल, बच्चे को बचाया मैंने और दे दिया। मैंने कहा कि ये तो बहुत छोटी स्टोरी हो गई। देन यू आर लाइक मैंने आगे भी लिखी है, मतलब बताओ। तो देन आई वेंट टू द नियरेस्ट विलेज जहाँ जहाँ का था बच्चा, वहां पे जाके आई ओपन द स्विमिंग, पूरा वो क्लासेस, आई स्टार्ट टीचिंग बच्चे को स्विमिंग, ताकि अगले 6 महीने में कोई बच्चा डूबे ना आसपास के तालाब में। ओके। देन आई रियलाइज कि उन्होंने बहुत ज्यादा ही लंबा लिख दिया है। इतना नॉर्मली द जो मेरे को समझ में आया कि वॉट एवर स्टोरी कम्स इन द TAT, दैट्स फॉर यू, कि अगर आप वहां पे फंस जाओ एज अ पर्सन, तो आप कैसे उसको नेविगेट करो उस प्रॉब्लम को। अगर हम उसमें भी बियॉन्ड द स्टोरी बहुत कुछ लिखने लग जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल कि एक्सीडेंट हो गया सड़क पे, मैंने बचा लिया, एडमिट करा दिया, बंदा सेफ हो गया, स्टोरी खत्म हो जानी चाहिए। बट देन हाँ। आई गो टू द नियरेस्ट ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर या कमिश्नर, आई टेल हिम कि सर हमको यहाँ पे बोर्ड लगाने चाहिए, या फिर हम लोग को यहाँ पे रैली करनी चाहिए, तो वो बहुत बियॉन्ड द स्टोरी हो जाएगा, तो फिर लेंथ भी देन बढ़। साइकिल थिंक कि वी आर पुटिंग अप अ शो, तो वो नहीं करना है मेरे को। तो आई रिमेम्बर कि मेरे को ये नहीं करना कुछ भी करके, आई यूज टू कीप माई स्टोरी वेरी शॉर्ट, एक प्रॉब्लम निकाली, उसका सॉल्यूशन निकाला, स्टोरी खत्म। तो दिस वॉज द होल स्ट्रेटेजी मैम। उसके अलावा वन देयर वाज वन थिंग कि जो लास्ट स्टोरी होती थी PIQ वाली, फॉर एग्जांपल जो ब्लैंक स्टोरी होती है, तो उसमें आई यूज टू थिंक कि इट शुड कम फ्रॉम माई PIQ स्ट्रेट अवे। फॉर ओके। एग्जांपल जैसे कि आई हैव प्लेड बास्केटबॉल, आई हैव प्लेड फुटबॉल एंड आई डू पोएट्री एज वेल। तो ओके। मेरी ये तीन चीजें हैं मेरी PIQ से निकल के आती है, तो आई यूज टू मेक 3 स्टोरीज। तो जो भी उनमें से जो भी उस दिन मेरे को अच्छी लगेगी, मैं उस दिन लिख के आ जाऊंगा वहां पे ब्लैंक स्टोरी में। फॉर एग्जाम्पल बास्केटबॉल के लिए कि जैसे कि रमेश इज स्टूडेंट in his college and he has to take his team to take part in the inter school basketball competition. तो वहां पे he'll do the trials for his team, he'll select players, they will do the practice after school hours, and they will do the team building skills and everything, and उसके बाद में when they go to the competition they played well, they defeated the defending champions of the last time, and they won the competition basically. एंड पोएट्री के लिए भी सिमिलरली एक स्टोरी पोएट्री के ऊपर, पोएट्री कंपटीशन के ऊपर। तो आई यूज टू थिंक कि जो स्टार्टिंग 11 स्टोरीज है, दे कैन कम फ्रॉम एनी होराइजन इन द लाइक यूनिवर्स, कहीं से भी उठा के ला सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, इट विल शो माई इमेजिनेशन। बट जो मेरी लास्ट स्टोरी है दैट विल स्ट्रेट अवे कम फ्रॉम माई PIQ, जो मेरी ब्लैंक स्टोरी है। तो दैट यूज टू हेल्प मी अलॉट, तो दैट वाज माई होल स्ट्रेटेजी फॉर TAT। और मैम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ठीक रहेगा, बिकॉज फिर हाथ थकेंगे नहीं। हैंड यूज टू लाइक मसल मेमोरी रहेगा तो थकेगा नहीं हाथ, नहीं तो अगर हम सोचते हैं कि हम पढ़ाई करके चल जाए, बस पढ़ के चल जाए, हम कुछ भी कर लेंगे, तो फिर उससे तो काम बनेगा नहीं, तो हम राइट। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। यस मैम। When it comes to TAT, you also have used diverse names. राम, श्याम या दो तीन इस तरह के नेम का यूज ना करें। सेकेंडली, इफ यू आर अनअवेयर अबाउट एनी प्रोफेशन, लाइक अबाउट फायर ब्रिगेड के कैसे प्रोसेस करती है, क्या उनका प्रोसीजर होता है, यूज चैट जीपीटी। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द यस नाइसेस्ट मैम। टू नेविगेट योर स्टोरी। आप वहां से इंस्पिरेशन ले सकते हो, उनका वर्क प्रोसेस देख सकते हो कि इसके आगे प्रोसेस में क्या चीजें होनी चाहिए, या पानी में अगर कोई डूब रहा है तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। I mean, with respect to ideas, you will get a lot of ideas from ChatGPT. And I think आपने जो बोला है 12th story के लिए, that is one of the important picture which is shown to us, that is a blank picture. तो उसमें अपनी आपको शोकेस करना, आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग एनीबडी कैन डू। आपने सब चीज़ों को कवर किया है। विल गो अहेड विद WAT. When it comes to WAT, time constraint is the biggest issue which any candidate face, because in 15 seconds you have to write word, not only one but 60 words. So Yes. how you used to practice, and apart from that, what was your ideology? How are you going to perform this test? यस मैम। मैम WAT के लिए माय बेसिक प्लान वाज कि पहले तो आई यूज टू प्रैक्टिस वर्ड्स विदाउट द टाइमर। फॉर ठीक। एग्जांपल कोई भी वर्ड उठाया,
उस पर आई यूज्ड टू राइट 3 सेंटेंसेस। हम्म। टाइमर को हटा के, तो एक हम्म। दिन में मान लीजिए 20 वर्ड ही कर पाया फॉर एग्जाम्पल, 1-2 घंटे में बैठ के। बट वो ओके। 20 वर्ड किए, हर हर वर्ड पे 3-3 सेंटेंस लिख दिए। तो हम्म। एंड पर हर वीक के एंड में आई यूज्ड टू रिवाइज की क्या क्या वर्ड हमने लिखे हुए हैं बेसिकली। हम्म। दिस वाज माय स्ट्रैटेजी जब मैं स्टार्टिंग में प्रिपेयर करा था देहरादून अटेम्प्ट से पहले, बिफोर हम्म। माय फोर्थ अटेम्प्ट। एंड ओके। उसके बाद में मैम माय स्ट्रैटेजी वाज लाइक कि जब वर्ड भी, जो कोई वर्ड लिख रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉजिटिव वर्ड आता है तो आई विल हम्म। थिंक अबाउट इट्स इम्पैक्ट हमेशा। फॉर एग्जांपल आया सेल्फ, फॉर एग्जांपल सेल्फ आ गया, ठीक हम्म। है, तो सेल्फ से आई मेड सेल्फ एनालिसिस। एंड अब सेल्फ एनालिसिस का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इट विल इंप्रूव योर पर्सनैलिटी। तो सिंपली आई राइट कि सेल्फ एनालिसिस हेल्प्स टू इंप्रूव द पर्सनैलिटी। ओके। तो पॉजिटिव वर्ड का इम्पैक्ट ढूंढना है। और अगर कोई नेगेटिव वर्ड आ गया तो आई शुड थिंक कि मैं इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे कर दूं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आ गया फेलियर। अब फेलियर इज अ नेगेटिव वर्ड, तो आई यूज टू थिंक कि फेलियर के चांसेस मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, या फिर हम्म। फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो हार्ड वर्क कैन बी देयर, डिसिप्लिन कैन बी देयर, डिटर्मिनेशन, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे उसमें। तो आई ओके। शुड राइट जैसे कि फॉर एग्जांपल कंसिस्टेंसी हेल्प्स टू मिनिमाइज चांसेस ऑफ फेलियर। तो हम्म। वैसे आई यूज टू टैकल द नेगेटिव वर्ड्स। हम्म। एंड फॉर एग्जांपल एक बोलते हैं फैक्चुअल सेंटेंस नहीं लिखने होते, बहुत कम लिखने होते हैं। तो मैम राइट। उसमें आई यूज टू थिंक जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलेशन आ गया, तो अगर मैं लिख के आ जाऊंगा कि इंडिया यूएस शेयर अ गुड रिलेशन, तो हम्म। इससे द साइकोलॉजिस्ट वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट मी। ही विल राइट। अंडरस्टैंड कि बंदा करंट अफेयर पढ़ के आया है, बहुत बढ़िया बात है, बट मेरे बारे में ही वोंट लाइक नो एनीथिंग। अगर मैं लिख दूंगा कि फॉर एग्जांपल रिलेशंस आर डिस्ट्रैक्शंस इन लाइफ, तो उससे दे विल बी इम्पैक्ट की बंदे का जो परसेप्शन है रिलेशन के ऊपर, वो दैट्स अ नेगेटिव परसेप्शन। राइट। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया रिलेशनशिप्स बिल्ड स्ट्रेंथ और हम्म। प्रोवाइड स्ट्रेंथ। हम्म। दैट्स अ पॉजिटिव, लाइक क्या बोलते हैं उसको, अप्रोच टुवर्ड्स वर्ड फॉर एग्जांपल। राइट। तो आई यूज टू थिंक कि जितने मैं अपने आसपास के ऑब्जर्वेशन सेंटेंस लिख दूं। फॉर एग्जांपल आई यूज टू लाइक फैक्चुअल सेंटेंस को इग्नोर करके जितने भी ऑब्जर्वेशनल है आसपास के, फॉर एग्जांपल रिलेशन से मेरे को क्या बेनिफिट मिल रहा है लाइफ में, लाइक हम्म। रिलेशन बाय एनी चांस की, फॉर एग्जांपल गर्लफ्रेंड हो गई या पेरेंट्स हो गया, कोई भी हो गया, तो उससे राइट। मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है, उस पर आई यूज टू राइट सम वर्ड्स। और फॉर एग्जाम्पल रिलेशन से क्या हो रहा है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो रही है, सपोर्ट मिल रहा है, तो आई टू राइट कि रिलेशन लिख दिया, तो उसके आगे ब्रैकेट में लिख दिया सपोर्ट, फिर नीचे स्ट्रेंथ। तो उस दिन जो भी वर्ड याद आया उस जगह, तो आई जस्ट पुट दैट वर्ड इनटू द सेंटेंस, इट विल बी लाइक इट विल फॉर्म अ गुड सेंटेंस। तो आई राइट। यूज टू हैव अ लाइक सेट ऑफ वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन, सेक्रीफाइस, ऑल दीज वर्ड्स। तो अगर जो ये वर्ड्स है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर किसी में भी आ गई, फॉर एग्जाम्पल हार्ड वर्क हेल्प्स टू अचीव सक्सेस हो गया। अब हम्म। हार्डवर्क की जगह आई कैन राइट क्या बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑल्सो, डिटर्मिनेशन ऑल्सो, डिसिप्लिन ऑल्सो। तो वो सेट ऑफ वर्ड्स विल बी यूज इन एनी सेंटेंस। दिस हम्म। वॉज माई स्ट्रेटेजी फॉर WAT। एंड द सेकंड थिंग वाज प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैम, बिकॉज वर्ड्स रिपीट होते हैं बहुत ज्यादा WAT में। तो अगर हम्म। हमने कोई वर्ड फॉर एग्जाम्पल बाहर प्रैक्टिस कर लिए, तो वर्ड बहुत बहुत चांस है कि वो रिपीट हो जाएगा इधर हम्म। आके अंदर। तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आओगे तो इट विल हेल्प यू। तो ओके। दिस वाज माई होल स्ट्रेटेजी फॉर WAT। उसके बाद में मैम सेंटेंस को बहुत शॉर्ट कर दिया मैंने बेसिकली, लाइक 3 और 4 वर्ड्स में सेंटेंस खत्म करता था। ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आई थिंक कि साइक इज देयर टू अंडरस्टैंड माई मेंटेलिटी, नॉट माई ग्रामर। तो अगर ओके। ग्रामर थोड़ी ऊपर नीचे हो भी रही है तो आई यूज टू बी फाइन की कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज हो जाएगा। मेरी ठीक। इंग्लिश इतनी अच्छी है भी नहीं वैसे मैम, वैसे तो आई यूज टू थिंक कि ग्रामर थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा तो चलेगा, बट मेरा जो भाव है बेसिकली, जो मेरे इमोशंस है बिहाइंड द सेंटेंस, वो कन्वे हो जाना चाहिए आगे तक। ओके। तो आई यूज टू थिंक थोड़े अगर सेंटेंस शॉर्ट भी हो गए उस चक्कर में तो चल जाएगा। आई टू ओके। राइट 3-4 लाइन, 3-4 वर्ड्स के सेंटेंस, एंड उससे फिर काम बन जाता था। दिस ओके। वाज माय होल स्ट्रेटजी फॉर WAT मैम, घूम फिर के। SRT के अंदर authenticity with time constraint is very difficult, and most of the people face difficulty because there are certainly very similar kind of SRTs. अगर यस स्नेक मैम। हो तो भी सेम स्नेक 3 सिनेरियोज के अंदर वो आपको देते हैं, या मैम सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, रोड एक्सीडेंट हो, चाहे ऑफिस में लेट हो रहा हो. सो हाउ, व्हाट वुड बी योर सजेशन रिगार्डिंग SRT? आई रियली वांट टू नो दैट. यस मैम। हम SRT के टाइम पे फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट SRT आती है। तो हम्म। स्टार्टिंग में तो एक तो SRT में है कि अपन को वो स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, हम्म। इन द स्टार्टिंग आई टू राइट ओनली 28 SRT के आसपास। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करी, तो हम्म। आते आते अभी 49 तक पहुंच गया। बट इसमें मैम वो था कि इन द स्टार्टिंग आई टू राइट हर SRT में आई टू बी रियली सीरियस, I have to complete the SRT, I have to like find a good solution, authentic solution for it. बट हम्म। देन लेटर आई रियलाइज कि हर SRT को उसकी जो सिवियरिटी होती है SRT की, वो हम वी हैव टू मैच, कि ओके. इतनी सीवियर प्रॉब्लम है भी या नहीं है, इतनी हम्म। सीरियस प्रॉब्लम है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज SRT जिसमें अ पर्सन इज गोइंग टू अ सिनेमा हॉल टू वॉच अ मूवी दिस गर्लफ्रेंड, एंड हम्म। वहां पे अ पर्सन इज सेलिंग टिकट्स इन ब्लैक। हम्म। तो आगे लिखा है नाउ यू विल। तो फॉर एग्जाम्पल वहां पे अगर कोई लिखता है कि आई विल कॉल द पुलिस, गेट द हाँ. मैन अरेस्टेड, एंड देन आई विल थिंक आई विल जस्ट अबैंडन द प्लान फॉर द मूवी, ऐसा कुछ भी करके, तो दैट बिकम्स वेरी हार्श
कि यहाँ पे आर मेन फोकस वाज टू, कि गर्लफ्रेंड को मूवी दिखानी इज द मेन फोकस हमारा यहाँ पे। एंड हम्म इस पे भी अगर वी आर फोकसिंग ऑन की एथिकली करेक्ट, हम हर जगह नहीं हो सकते बेसिकली। तो हम्म यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया कि हम चोर को पकड़वा देंगे, तो ही इज जस्ट सेलिंग टिकट्स फॉर लाइक 10-5 रुपए के उस पे मार्जिन पे। एंड उस जैसे बहुत सारे होंगे शहर में, आप एक को पकड़वा दोगे सब तो पकड़ा पाओगे नहीं आप। एंड वहां पे हमारा मेन मोटिव वॉज टू लाइक अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी दिखाना। तो वहां ओके पे अगर हम इस चीज पे फोकस कर लेंगे तो वहां पे दिक्कत आएगी। तो आई टू राइट की फॉर एग्जाम्पल आई टेक द टिकट, वॉच द मूवी, एंजॉय एंड देन ड्रॉप माई गर्लफ्रेंड बैक होम। मैंने हर ओके बार यही लिखा है मैम घूम फिर के। एंड ओके फॉर द स्नेक, फॉर वन मोर देयर वाज दिस वन मोर एसआरटी, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, यू आर हम्म इन द स्कूल एंड योर फ्रेंड इज चीटिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, नाउ यू विल। तो वहां पे पीपल विल बी लाइक कि हम मॉरली एथिकली करेक्ट हो जाएंगे, विल कॉल द टीचर, क्या बोलते हैं, कंप्लेन अबाउट माई फ्रेंड हु इज चीटिंग, देन टीच हिम अ लेसन, ऐसा करके। तो वो तो हम कर नहीं सकते फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज वी हम्म हैव टू अपना फ्रेंड को भी साथ में लेके चलना है। देन आई हम्म यूज टू राइट की फॉर एग्जाम्पल कि आई लेट हिम चीट दिस टाइम, एंड देन आई आफ्टर द एग्जाम आई हेल्प हिम विद स्टडीज, एंड नेक्स्ट टाइम ही विल पास विदाउट एनी चीटिंग। मीटिंग तो बेसिकली उस चीज को थोड़ा नेगेट कर दिया, हर चीज में कांट बी एथिकली करेक्ट। एंड हम्म स्नेक प्रॉब्लम पे फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू सिनारियोज। अगर स्नेक आपके घर में आ गया, देयर इज वन सिनेरियो। अगर हम्म स्नेक आपको बाहर मिलता है, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। अब ओके जैसे कि स्नेक हमको एक एसआरटी है जहाँ पे यू आर गोइंग ऑन रोड, खाली सड़क पे, एंड देन देयर इज अ स्नेक विच इज लाइक क्रॉसिंग द रोड, एंड नाउ यू विल। तो उसमें इफ देयर इज लाइक पूरा खाली सड़क है, कोई नहीं है वहां पे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ हार्मिंग द स्नेक और किलिंग द स्नेक और कॉलिंग द स्नेक कैचर वहां पे। तो ये हम्म सिंपली व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट स्टेप बैक थोड़ा सा, लेट द स्नेक पास एंड देन वी कैन पास बाय। तो राइट सिंपली वो उसमें सॉल्यूशन बन गया। एंड फॉर एग्जांपल अगर स्नेक आपके घर में घुस जाए, फॉर एग्जांपल स्नेक आपके गार्डन में है या फिर आपके रूम में ही घुस जाए फॉर एग्जांपल, वहां पे यू हैव टू कॉल द स्नेक कैचर एट लास्ट। या फिर आप उसको पकड़ सकते हो, मार सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। बट वहां पे पकड़ाना जरूरी पड़ेगा स्नेक को। वहां पे यू कांट से कि आई जस्ट क्लोज द डोर, लेट द स्नेक पास बाय, पता नहीं कहाँ घुस जाए। तो वो सही उस दोनों सिनेरियो को थोड़ा देख के चलना पड़ता है। हम्म एंड तो हाँ मैम, ये दोनों सिनेरियो को यू हैव टू डिफरेंशिएट कि किसमें एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है, किसमें एक्शन लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड हम्म उसके अलावा मैम फॉर एग्जांपल माय स्ट्रेटजी टू इंक्रीज माय नंबर ऑफ एसआरटी अटेम्प्ट्स, फॉर ओके एग्जांपल स्टार्टिंग में आई राइट 28 एसआरटीज, फिर वो हम्म बढ़ते बढ़ते 35 तक आई, फिर बढ़ते बढ़ते 49 तक आई अभी। तो मैं हम्म उसमें व्हाट आई यूज्ड टू डू कि बहुत ही शॉर्ट सेंटेंस, पहले तो सेंटेंस लिखता था पूरे लंबे लंबे, हाँ हाँ कि आई विल डू दैट, नाउ आई विल डू दैट, आई विल कॉल माय पेरेंट्स, जो भी था वो। बट हम्म देन आई स्टार्टेड राइटिंग स्लैश, बीच में स्लैश लगाया और हम्म दो एक्शन लिख दिए, स्लैश लगाया एक और एक्शन लिख दिया। ओके अभी तो उसको और शॉर्ट कर दिया, लाइक 2-3 वर्ड में लिखा सेंटेंस। ठीक हम्म है, जैसे कि मीडिएट बिटवीन देम स्लैश क्या बोलते हैं, मेक देम अंडरस्टैंड द पॉइंट स्लैश लाइक रीबिल्ड देयर फ्रेंडशिप, काम ओके खत्म फॉर एग्जांपल दिस। स्लैश करके इट हेल्प मी अलॉट। तो उसमें एक लाइन में खत्म हो जाता था, एंड उसमें फिर जल्दी जल्दी एसआरटी और ज्यादा होने लग गई। देयर हम्म वाज दिस माय अटेम्प्ट इन देहरादून। तो वहां पे क्या हुआ था कि एसआरटी लिखते लिखते मैं एक तो मैम, हम लोग देहरादून गए थे, तो वहां हम्म पे हम लोग जैसे कि हम 3 दोस्त गए थे साथ में, मैं, तुषार और आदित्य। तो हम तीनों गए, हम रात को बहुत हमने वहां पे खेल कूद मचाया होटल में, सुबह हम्म 4 बजे तक हम सोए नहीं रात को पूरी रात। अरे एंड अगले दिन हमारा अटेम्प्ट था देहरादून वाला। तो वी हम्म वेंट देयर, आई गॉट स्क्रीन्ड इन, एंड शाम को मेरा ये साइक टेस्ट था। आई वाज कंप्लीटली पूरा ब्लैंक। तो मैंने पूरा अपना दिया सब कुछ। तो वही मैंने बोला, जो मसल मेमोरी था जो मैंने प्रैक्टिस करी थी 3 महीने तक, मसल मेमोरी की मैंने फोरफ्रंट। तो जब एसआरटी और ये सब आया, फॉर एग्जाम्पल जब वैट भी आया, तो मुझे कुछ याद नहीं है मैं क्या लिख रहा था, बट मैं सब कुछ ठीक ठाक लिख के आ गया था एट लास्ट। एंड हम्म एसआरटी में क्या हुआ कि आई वाज राइटिंग द एसआरटी, और दो एसआरटी ऊपर नीचे हो गई। हम्म 16 की जगह आई रोट 17, 17 जब मैंने 18 पढ़ा, मैंने लगा कि 18 तो 18 है यहाँ, 17 में कहाँ लिखूंगा। तो आई थॉट कि मैं 16 मिस कर चुका हूँ। मैं ओके 16 लिखा उसके नीचे, तो मैंने उसका एरो बनाया कि ए ऊपर और वो उसके नीचे ऐसे करके। बट ओके इन दैट अटेम्प्ट ऑल्सो आई गॉट रिकमेंडेड, सो आई थॉट थोड़ी बहुत गलतियां माफ कर देते हैं साइक वाले। हाँ हाँ एंड इन दैट अटेम्प्ट ऑल्सो देयर वाज वन थिंग कि थर्सडे को इवनिंग में जब हमको आउट पास मिलता है देहरादून से, तो हम्म हम लोग जाने वाले थे आउट पास पे। एंड सडनली जो ड्यूटी एनसी होते हैं, ही केम टू आवर अकोमोडेशन, उन्होंने बोला कि चेस्ट नंबर 30, 31 और 32 को साइक मैम बुला रही है शाम को। तो हम पहले डर गए कि क्या होने वाला है। तो जितने सीनियर्स थे मैम, उनने बोलना शुरू कर दिया कि तुम लोगों ने चीटिंग करी होगी पक्का, तुम बोर्ड आउट हो जाओगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे से आना बेटा, कोई बात नहीं। देन मैम हम्म हम लोग गए वहाँ पे पूरा रेडी होके साइक मैम के पास में। एंड वहाँ पे मेरा 15 मिनट का इंटरव्यू चला पूरा। लाइक आई वेंट इनसाइड एंड शी आस्क्ड मी, वहाँ पे दो साइक मैम थी। वन इज आई गेस विंग कमांडर करिश्मा सेठी मैम है वहाँ पे देहरादून में, एंड देयर इज वन मोर सिविलियन साइक मैम। तो ओके वो दोनों बैठे हुए थे, आई वेंट इनसाइड, मैं बोला मे आई कम इन मैम। अंदर घुसते ही मैम ने मेरे को देखा, शी स्टार्टेड राइटिंग समथिंग। ओके एंड दूसरी जो मैम थी, उनने मेरे को बोला कम इन, तो आई वेंट इनसाइड।
तो उनने बोला कि नॉर्मल क्वेश्चन पूछे। Mm-hmm. पहले बोला कि इट्स जस्ट अ नॉर्मल कन्वर्सेशन बिटवीन अस, इट Mm-hmm. वोंट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन रिजल्ट। एंड देन शी आस्क्ड मी एवरीथिंग कि कितने अटेम्प्ट हो गए, हर Mm-hmm. अटेम्प्ट का वो बताओ, क्या क्या लर्निंग्स थी आपकी। देन Mm-hmm. इस बार साइक कैसे प्रिपेयर करी आपने, क्या क्या Mm-hmm. डिफरेंट चेंजेस लाए आप। ऐसा करते करते 10 मिनट तक पूछते रहे कि वैट में आपने क्या डिफरेंट किया, इसमें क्या डिफरेंट किया, करते करते एंड एट लास्ट शी टोल्ड मी कि सुरेंद्र आई टेल यू वन थिंग। यस मैम। शी टोल्ड मी कि कल इफ यू डजेंट मैटर इफ यू गेट कॉन्फ्रेंस आउट टुमारो, यू Okay. आर डूइंग गुड, कीप डूइंग गुड एंड कम बैक इन दिस बोर्ड अगेन। तो मैं बहुत दुखी हो गया, मेरे को लगा कि मेरे को रिजल्ट सुना दिया अभी से ही कि कल आप Mm-hmm. कॉन्फिडेंट हो जाओगे और वापस आना अगली बार इधर ही। तो आई Mm-hmm. वेंट आउट, वैसे ही फिर 31 का हुआ, टू 31 का हुआ, फिर 30 का हुआ। एंड देन Mm-hmm. इवेंचुअली टू ऑफ अस गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम द दैट बोर्ड उसके बाद में। तो उसका आई डेंट गेट पहली बार सुना। द रीजन कि क्यों बुलाया था उन्होंने, आई हैड Mm-hmm. नो आइडिया। बट इवेंचुअली वो साइक, आई थॉट कि साइक मेरा अच्छा गया था उसके बाद में। Okay. तो फिर हाँ, तो दैट डे आई गॉट रिकमेंडेड उसके अगले दिन। दैट वाज माय फर्स्ट रिकमेंडेशन मैम। दिस वाज Okay. वन अनयूजुअल स्टोरी जो कभी हुई नहीं मेरे साथ में पहले। दिस वाज द Mm-hmm. फर्स्ट टाइम हुई थी, तो दिस मैंने वाज द भी थिंग। ये पहली बार ही सुना है रविंद्र जी की, सुरेंद्र की इस तरह से वो बुलाते हैं और चीज़ों को यस नेविगेट कर मैम। रहे हैं। आई एम ऑल्सो नॉट श्योर कि क्या रीजन रहा होगा, यस but मैम। ठीक है। One thing I would like to add here, whether it's WAT or SRT, do not leave any of the uh, यस कोई मैम। भी आप वर्ड को नहीं छोड़ना, कोई भी SRT को नहीं छोड़ना। इसका एक सिंपल implication ये होता है कि that you are running out of the situation, or you are, you don't have like word like sacrifice। अगर आप छोड़ दे रहे हो क्योंकि आपको दिमाग में नहीं आ रहा है कोई भी स्टेटमेंट, तो सेंटेंस नहीं आ रहा है, तो इफ यू आर स्कीपिंग इट दैट मीन्स यू हैव नो रिलेवेंस ऑफ दैट वर्ड इन योर लाइफ। तो इट्स ऑलवेज गुड टू, इफ यू आर अनअवेयर अबाउट द वर्ड, कुछ ज्यादा ही फैंसी वर्ड आपको आ गया और आप थोड़ा तो क्रॉस करके मीनिंग लिख दिया या मीनिंग नोट नोन, राइट समथिंग, राइट एनीथिंग दैट यस मैम। comes to your head. It's not necessary to use that word in the complete statement, sentence, but anything that comes up to your mind. Parents आया है तो you can write whatever you feel like without using the word also, but that should have some relevance with the word which is given. We'll go to यस SD. मैम। I think we are discussing so much in detail, but we'll try to cover all the things that we have already discussed. When it यस comes to SD, SD is one of the important areas. पहले prepare कर सकते हैं, पर इसके मैम। अंदर एक चीज रहता है कि what exactly to write, कौन से लाइफ के एरियाज को हमें शो करना चाहिए। आई वांट टू नो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट एग्जैक्टली you have written in your SD. Any few of the glimpse you would like to share with us? यस मैम। मैम एसडी में फर्स्ट थिंग तो ये है कि स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट में तो मैंने भी रियलाइज नहीं किया एसडी इज इंपॉर्टेंट। Okay. तो वी यूज टू थिंक कि अपने बारे में तो लिखना है, हम तो लिख ही देंगे जाके कुछ भी अच्छा सा। तो Mm-hmm. देन इन फोर्थ अटेम्प्ट दैट इज देहरादून, तो दैट टाइम आई प्रिपेयर्ड माई एसआरटी, Mm-hmm. सॉरी एसडी अच्छे से। तो Mm-hmm. एसडी में मैम व्हाट आई लाइक, हमने बात करी अपने दोस्तों से आराम से बैठ के वीडियो कॉल पे। एंड व्हाट वी रियलाइज्ड कि जो पेरेंट्स वाला सेक्शन है Mm-hmm. उसमें ऑल योर पॉइंट्स विल बी अराउंड योर दिस पर्सनल लाइफ, कि Right. पेरेंट्स क्या बोलेंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग लिखते हैं पेरेंट्स की, माई पेरेंट्स थिंक आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, और फॉर एग्जाम्पल माई पेरेंट्स थिंक आई एम वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स माई वर्क और ऐसा कुछ। तो Mm-hmm. मैम जितना मेरे को लगता है कि पेरेंट्स डोंट यूजुअली कमेंट ऑन योर प्रोफेशनल लाइफ ज्यादा। अगर Right. मैं पेरेंट्स से बात करूँ तो दे विल टेल मी कि मेरा अच्छा बेटा, प्यारा बेटा है, अच्छे से बात करता है सबसे, ये सब वो सब। तो आई यूज टू थिंक कि जितने भी पेरेंट्स वाले ओपिनियन है वो पर्सनल लाइफ से आएंगे। फॉर Okay. एग्जाम्पल हो गया कि ही इज वेरी स्वीट और ही इज वेरी वेलकमिंग पर्सनैलिटी। Mm-hmm. ठीक है। ही हेल्प्स अ लॉट इन द लाइक घर के कामों में। फॉर Mm-hmm. एग्जांपल आई यूज्ड टू राइट कि आई एम अ गुड मैनेजर अकॉर्डिंग टू माय मदर। तो उसमें ये रीजन लिखता था बिकॉज आई मैनेज माय मदर्स किटी पार्टी इन माय एट माय होम। Okay. दिस वाज द वन थिंग। सेकंड थिंग, हर जो भी मैं लिख रहा हूँ उसके नीचे दे यूज्ड टू बी एन एग्जांपल। फॉर Right. एग्जांपल कुछ Very भी लिख important. रहा हूँ तो फॉर एग्जांपल आई एम अ वेरी हेल्पफुल पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू माय पेरेंट्स बिकॉज आई हेल्प माय कजन्स एंड माय सिबलिंग्स वेन एवर दे नीड मी। तो ऐसे करके आई यूज्ड टू गिव एन एग्जांपल नीचे करके। देन Mm-hmm. थर्ड थिंग वाज कि मैम हर पैराग्राफ के नीचे एक नेगेटिव पॉइंट लिख देता था। Mm-hmm. वीकनेस फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग मेरी क्या वीकनेस है। तो जैसे Mm-hmm. कि फॉर एग्जांपल पेरेंट्स के जैसे कि 4 पॉजिटिव पॉइंट लिख दिए, देन Mm-hmm. वन वीकनेस। फॉर एग्जांपल आई कभी कभी आई टू राइट कि आई एम वेरी टॉकेटिव, मैं बोलता हूँ तो रुकता ही नहीं हूँ, बोलता ही रहता हूँ। एंड Mm-hmm. कभी कभी आई टू राइट कि अकॉर्डिंग टू माई पेरेंट्स आई स्किप मील्स, कभी कभी मैं काम कर रहा हूँ बहुत ज्यादा तो मैं खाना वाना छोड़ देता हूँ उस टाइम का, या Mm-hmm. फिर टाइमिंग मैच नहीं होती, मैं रात को लेट तक सोता नहीं हूँ। तो ये Mm-hmm. दो दो तीन चीजें आई यूज टू राइट वन ऑफ देम कोई भी नीचे। Okay. देन फॉर एग्जांपल सेकंड वाला जो था टीचर्स वाला फॉर एग्जांपल, Mm-hmm. उसमें ऑल ऑफ द पॉइंट्स वर यूज रिगार्डिंग द प्रोफेशनल लाइफ, जैसे कि Okay. डिसिप्लिन हो गया। ठीक है। अब डिसिप्लिन क्यों, बिकॉज आई वर्क एज ए स्कूल कैप्टन इन माई स्कूल, तो बिकॉज आई वाज डिसिप्लिन दैट्स व्हाई दे गिव मी दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं Right. एग्जांपल में ऐड कर देता हूँ उसको भी। Mm-hmm. डिसिप्लिन हो गया, हार्ड वर्किंग हो गया, सिंसियर हो गया, Mm-hmm. क्यूरियस हो गया कि आई यूज टू क्वेश्चन लाइक आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इन माई स्कूल टाइम।
तो Okay. उस चीज में आई यूज्ड टू से कि मैं बहुत क्यूरियस किड हूँ, पूछता ही रहता हूँ। तो उसमें आई यूज्ड टू एट दिस पॉइंट एग्जाम्पल में डाल देता था उसको। जो नेगेटिव था फॉर एग्जाम्पल, उसमें भी आई यूज्ड टू राइट अ वीकनेस ऑफ माइंड। फॉर Okay. एग्जाम्पल मैं लिखता था कि आई ओवर डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मेक देम परफेक्ट। तो उस चक्कर में आई लाइक क्रॉस द डेडलाइंस अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो ठीक जो है। डेडलाइन वाला मैटर है उस चक्कर में इट बिकम्स अ नेगेटिव पॉइंट फॉर मी, Okay. फॉर माई प्रोफेशनल लाइफ, तो वो लिख देता था। फ्रेंड्स में ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग जिसे मस्ती वाले पॉइंट होते हैं कि जो क्रैक करता हूँ, जॉयफुल होता हूँ, नन हम्म। ऑफ द पार्टीज इज इनकम्प्लीट लाइक कंप्लीट विदाउट मी। तो हम्म। वो सब करके दे हेल्पफुल होते हैं हम फ्रेंड्स के, Right. ट्रस्टवर्दी होते हैं, बिकॉज दे शेयर लॉट ऑफ सीक्रेट विद अस, दैट्स बिकॉज वी आर ट्रस्टवर्दी। तो Right. ट्रस्टवर्दी कुड बी अ पॉइंट। तो वैसे करके पॉइंट बना के उसमें भी एक वीकनेस डालता था। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग आवर कोविड टाइम्स, तो आई डोंट यूज टू प्ले लॉट ऑफ गेम्स ऑन माई फोन। दोस्त बोलते थे कि यार तू ऑनलाइन आता नहीं है हमारे साथ कभी भी टाइम स्पेंड करने। तो आई यूज टू मेक दैट अ पॉइंट, और मैं लिख देता था नीचे कि मैं Okay. ज्यादा ऑनलाइन टाइम स्पेंड नहीं करता हूँ, तो इसलिए मेरा कनेक्शन जो है वो उतना ज्यादा बनता नहीं है, बट मैं मंथली बेसिस पे बात कर लेता हूँ फोन पे, ऐसे करके आई राइट अ नेगेटिव वीकनेस उसमें जाके। Okay. द फोर्थ पॉइंट कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर, तो उसमें सब तीनों फर्स्ट पैराग्राफ का कल्मिनेशन बना के आई टू राइट इन दैट। Okay. एंड उसमें भी एक वीकनेस लिख देता है लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल इफ आई थिंक दैट आई एम फिजिकली अ बिट वीक, आई कैन इंप्रूव ऑन दैट, मैं उसको भी हम्म। लिख देता था। और इफ आई थिंक दैट माई करंट अफेयर्स आर अ वीक पॉइंट, आई कैन इंक्रीज माई जनरल अवेयरनेस, तो उसको भी आई यूज टू राइट एज अ वीक पॉइंट। एंड Okay. इन द फिफ्थ पैराग्राफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो जो मेरे को समझ में आया मैम की, बिकॉज एस डी में आप एस डी से आपको ट्रेनेबिलिटी मार्क्स मिलते हैं। हम्म। फॉर एग्जाम्पल जो एनडीए वाले बच्चे उनको बहुत ज्यादा मार्क्स मिलते हैं ट्रेनेबिलिटी के, बिकॉज दे हैव 4 years। तो अगर हम्म। बच्चा थोड़ा सा बेवकूफ भी है तो दे कैन उनको ठोक पीट के दे कैन मेक देम परफेक्ट 4 साल में। बट अब हम ओटीए या फिर आईएम में जाते हैं तो 1.5 साल हो गया, ओटीए के लिए 11 महीने हो गया, तो दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम। तो दे वांट कि बंदा पहले से ही ऑफिसर लाइक क्वालिटी या कुछ तो लेके आए। हाँ। तो अगर हम लिख रहे हैं उसमें फॉर एग्जाम्पल कि आई वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश कम्युनिकेशन फॉर एग्जाम्पल, और आई हम्म। वांट टू क्या बोलते हैं, आई वांट टू माय इम्प्रूव माय फिजिकल फिटनेस और कुछ भी लास्ट पैराग्राफ में, तो उसमें आई यूज टू राइट कि मैं कर क्या रहा हूँ अभी उसके लिए। लाइक आई कांट राइट कि आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन द फ्यूचर। हम्म। ये तो मतलब बच्चे लिखेंगे तभी चलता है, बट हम एज अ बड़े लिखेंगे तो जमेगा नहीं। तो वी Okay. हैव टू राइट कि हम उसके लिए कर क्या रहे हैं अभी, बिकॉज हम्म। वो कॉलेज तो खत्म हो चुका है, नाउ वी हैव टू डू समथिंग फॉर दैट। तो आई Right. जो भी मैं कुछ लिखता था फॉर एग्जांपल करंट अफेयर लिख दिया, या फिर आई यूज टू राइट कि माय फिजिकल फिटनेस इज अ बिट वीक, आई वांट टू इंप्रूव ऑन दैट। तो आई टू राइट कि अभी मैं कर क्या रहा हूँ उसके लिए, मैं रनिंग कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, आई वांट टू बी मोर काम एंड कंपोज पर्सनालिटी, तो उसके लिए मैं योगा कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, वो भी लिख देता था पूरा करके। तो आई यूज टू बिकम अ बिग पैराग्राफ लास्ट में। तो ये सब करके, तो दिस वाज द थिंग कि जो एसडी के लिए प्रिपेयर्ड मैम। ठीक है। तो ऐसे करके एसडी प्रिपेयर करी थी। Surendra, when it comes to personal interview, you have gone through a lot of personal interview, some good, some bad, and there would be a time जहाँ पे आपसे काफी drilling questions पूछे गए होंगे, and maybe in the initial time you were unable to answer it properly. So exactly past experience कैसा रहा है personal interview का? यस मैम। मैम फ्रॉम द फर्स्ट इंटरव्यू ऑनवर्ड्स देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चन जो मैं आंसर ही नहीं कर पाया। फॉर एग्जांपल Okay. मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड इनफ। तो उन्होंने हम्म। पूछा कि हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एट होम, एंड आई हैड नो आंसर। आई वाज जस्ट लाइक कि सर मैं घर पे बर्तन धो देता हूँ। दे वर लाइक हम्म। बेटा और कुछ बताओ, एंड आई वाज नॉट एबल टू आंसर दैट आल्सो। Okay. और पापा के सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आई वाज नॉट एबल टू आंसर दैट। तो हम्म। उसके बाद में व्हेन आई वेंट फॉर माय थर्ड इंटरव्यू, दैट वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट देहरादून। सो आई हम्म। प्रिपेयर्ड लॉट। तो उसमें मैंने क्या किया, बेसिकली आई यूज्ड टू हैव अ फाइल, मैंने फाइल बनाई थी पूरी। तो फाइल हम्म। के फर्स्ट पेज पे आई यूज्ड टू हैव माय पीआईक्यू फॉर्म, उसको पूरा भर के अच्छे से। एंड हम्म। सेकंड पेज से जितने भी सीआईक्यू होते हैं, द रैपिड फायर क्वेश्चंस, मैंने हम्म। इंटरनेट से निकाले सीआईक्यू सारे, एंड देन आई यूज्ड टू राइट द सीआईक्यू। हम्म। उसके वे बुलेट पॉइंट लगता था पूरे पूरे। लाइक फॉर हम्म। एग्जांपल मार्क्स हो गए मेरे, उसके बाद में पेरेंट्स की क्वालिटी हो गई, वो भी लिख लेता था बुलेट पॉइंट में सोच सोच के। तो आई हैड अ 7 डे प्लान कि 7 दिन दूंगा आराम से और कुछ नहीं करूंगा, बस हम्म। इस फाइल को अच्छे से बनाऊंगा। तो फिर हम्म। मैंने सीआईक्यू 1 पूरा लिखा, सीआईक्यू 2 लिखा, दो फैमिली वाला सीआईक्यू आता है, लाइक हम्म। हाउ डू यू हेल्प योर नेबर्स एंड हाउ डू यू हेल्प एट योर होम, घर पे क्या क्या करते हो। तो जब सोचने लगे तो बहुत नए नए पॉइंट्स निकले वहां पे। फॉर एग्जाम्पल नेबर्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल हम सोचते नहीं इतना, बट व्हेन वी टॉक तो हम उनके घर पे चाबी रख सकते हैं, हम उनसे सिलेंडर बोरो कर सकते हैं, हम कैंटीन जाते हैं तो उनके लिए सामान ले आते हैं, वो हमारे लिए सामान ले आते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो दीज थिंग्स आई एडेड, स्मॉल स्मॉल थिंग्स। तो जब भी इंटरव्यू यूज्ड टू आस्क मी दीज क्वेश्चन और मैं बहुत माइन्यूट चीजें बताता था, तो यूज्ड टू फील कि हाँ बंदे को पता है Right. अबाउट हिज ओन सेल्फ। हम्म। सेकेंड थिंग मैम अबाउट द इंटरव्यू, आई थॉट कि रैपिड फायर को रट्टा मारना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम Okay. उतना फोकस करते नहीं है, बट बिकॉज आई थिंक कि जो स्टार्टिंग के 5 मिनट तो रेपो बिल्डअप में ही चल जाते हैं। उसके बाद हम्म। में जो रैपिड फायर आता है, इफ यू रिमेंबर योर रैपिड फायर अच्छे से, तो हम्म। आप उस अगले 10 मिनट को अच्छे से नेविगेट कर लोगे। एंड आप हम्म। जो रैपिड फायर में बोलोगे अगले आधा घंटा उसी का काउंटर क्वेश्चन चलेगा। तो अगर ठीक। आपको रैपिड फायर अच्छे से याद है,
तो इंटरव्यू का रेपो अच्छे से बिल्डअप हो जाता है। एंड इंटरव्यू ऑल्सो नोज कि बंदे का रिटेंशन एबिलिटी तो है, ही कैन रिटेन द नॉलेज अच्छे से पूरा जो उसने जो पूछा गया है उससे। तो Right. उसके बाद में मैम आई लाइक फॉर एग्जांपल आई टेल यू अबाउट द लाइक आई वेंट टू जलंधर फॉर माय इंटरव्यू। दिस वाज माय फिफ्थ फिफ्थ इंटरव्यू। इट वाज माय सिक्स अटेम्प्ट इन फिफ्थ इंटरव्यू। तो आई Okay. वेंट देयर फॉर माय सीडीएस ओटीए। एंड वहां पे आई वेंट एंड वहां पे मेरा बिकॉज आई वाज अ पीआर, एयरफोर्स का पीआर पहले से। तो Mhm. उधर मेरा कुछ रैपिड फायर नहीं हुआ, पूरा इंटरव्यू हिंदी में चला। एंड द फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड मी कि बेटा तुम्हारा एनडीए क्यों नहीं निकला। तो आई Mhm. गेव हिम सम रीजंस। तो यू आर नहीं टेल मी मोर रीजंस, टेल मी सम अदर रीजन। चलते 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 आधा घंटा चला उस पे पूरा। एंड Okay. देन ही स्टार्टेड लाइक टेलिंग मी कि मेरी लाइफ में मैंने कुछ किया ही नहीं है अभी तक। ही वाज लाइक कि सुरेंद्र आई विल टेल यू वन थिंग, कि जो तुम्हारी डिग्री है और जो तुम्हारा पर्सनैलिटी है, तुम वापस दिल्ली जाओ और कॉल सेंटर में काम कर लो। तुम्हारा जो पर्सनैलिटी है उसी लायक है। एंड ही Oh. टोल्ड मी पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी कि लाइक ही अब्यूज मी फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम जिंदगी में कभी अफसर बनोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ तुम्हें आज ये। तो आई हैड अ स्माइल, आई सेड कि सर नो सर, आई अश्योर यू दैट आई विल बी इन द अकेडमी इन द नेक्स्ट 6 months। बोलता Mhm. है कैसे? ना सर, यू विल रिकमेंड मी। तो बोलता है बेटा मैं तो रिकमेंड करूंगा नहीं तुझे। देन ही Mhm. आस्क्ड मी वन थिंग कि सुरेंद्र टेल मी वेदर वी विल जॉइन एयरफोर्स और आर्मी। Mhm. तो लॉजिकली आई वेंट फॉर सीडीएस, तो मेरे को आर्मी बोलना चाहिए था, बट Mhm. मैंने बोला एयरफोर्स कि सर आई Mhm. विल जॉइन एयरफोर्स। तो बोलता है वाई? ना सर, तो मैंने जैसे बोलना शुरू किया तो ही स्टॉप्ड मी। ही Mhm. सेड कि आई विल टेल यू व्हाई। बोला यस सर। बोलता है सुरेंद्र यू आर अ कावर्ड, तुम कायर हो, तुम मरने से डरते हो बेसिकली, बिकॉज तुम आर्मी में आओगे तुम मर जाओगे, तो यू आर अ कावर्ड। वैसे Mhm. दैट्स नॉट द केस। तो बोलता है कि कोई बात नहीं, यू ज्वाइन एएससी और ऑर्डिनेंस कुछ और ज्वाइन कर लेना, नहीं मरेगा तू। बोला सर नो सर, एएससी ऑल्सो हैज देयर ओन इम्पोर्टेंस इन आर्मी। बोलता है इज इट? बोला यस सर। बोला टेल मी 10 इंपॉर्टेंस ऑफ एएससी इन द आर्मी। मैंने Okay. दो चार बताए उनको। फिर उसके बाद चलता रहा इंटरव्यू। एंड उसके बाद में उन्होंने बीच में एसी ऑफ कर दिया अपने रूम का। ही वॉज द Mhm. डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ 31 एसएसबी बोर्ड। तो Okay. उनके बेसिकली यहाँ पे फेस पे थोड़े मार्क्स हैं व्हाइट कलर के। तो वी यूज टू कॉल हिम बैटमैन। Okay. तो बैटमैन सर ने एसी ऑफ कर लिया बीच में। एंड उसके बाद में सडनली मेरे को पसीना आने लग गया, तो इसमें 1 घंटा खत्म हो गया था बोलते बोलते। एंड Mhm. सडनली मैंने हल्का सा ऐसे किया, तो ही Mhm. टोल्ड मी यू आर स्वेटिंग। मला नो सर। तो बोलता है नहीं यार तेरे को इतनी जल्दी पसीने आ गए। ही वॉज टेकिंग द होल इंटरव्यू इन हिंदी और आई वॉज स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो बोलता है तेरे को इतनी जल्दी पसीने आ गए यार सुरेंद्र यार, तू कैसा पीआर है तू? तो आई टोल्ड हिम कि सर आई कैन गिव यू 1 more hour ऑफ इंटरव्यू। नहीं Mhm. नहीं, तेरा तो 1 घंटा खत्म हो गया बेटा। एंड देन Mhm. ही टोल्ड मी कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम योर पेरेंट्स स्कोल्डेड यू। तो Mhm. मैंने बोला कि सर लेट मी थिंक। तो आई टोल्ड हिम कि सर 10th क्लास में। तो ही कट मी इन बिटवीन, बोलता है कि 10th क्लास नहीं अभी का बताओ। तो मैंने बोला सर अभी का तो आई कांट रिमेम्बर। बोलता है आई विल टेल यू। बोला यस सर टेल मी। बोलता है योर पेरेंट्स डोंट स्कोल्ड यू नाउ बिकॉज दे हैव गिवन अप ऑन यू, they don't expect anything from you now. And I was completely blank. I smiled to him. I said that that's not the case. Mhm. बोलने को देन ही टोल्ड मी कि अगर आई हैड अ सन लाइक यू, तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता। My God, आई how आई bad आई he's saying about you. एंड दिस वाज 1.5 घंटे चलता रहा मैम पूरा। देयर वाज Okay. नो रैपिड फायर एंड कुछ करंट अफेयर भी नहीं पूछा उन्होंने आर्मी के बारे में कुछ ना कुछ। Mhm. Mhm. एट लास्ट खत्म होने से पहले ही टोल्ड मी कि टेल मी वन करंट अफेयर दैट यू नो। तो Mhm. आई ऑलवेज राइट कि माय वीकनेस इज माय करंट अफेयर, बट मैं आई टोल्ड हिम कि मैं प्रिपेयर करके आया हूँ। तो आई Okay. टोल्ड हिम सम ऑफ द करंट अफेयर्स। देन ही Mhm. वाज लाइक कि नहीं नहीं नहीं, आई विल आस्क यू वन। ना Mhm. ओके। तो ये आस्क मी कि साउथ अमेरिका में कोई अभी लेडी प्रेसिडेंट बनी है किसी देश की, मेरे Mhm. को देश का नाम और लेडी का नाम बता दो। एंड Mhm. आई हैड जीरो आइडिया कि क्या 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 नाम है। तो आई Mhm. आस्क्ड हिम कि सर कैन आई मेक अ गेस। Mhm. बोलते हाँ हाँ मेक अ गेस। तो आई गेस्ड कुछ भी करके स्वीडन या कुछ बोला मैंने, आई डोंट रिमेम्बर मैम। Mhm. एंड उनने बोला कि नहीं यार सुरेंद्र यू डोंट नो दिस मच ओनली। तो बाहर जाके क्या मुंह दिखाएगा कि तू प्रीवियसली रिकमेंडेड कैसे है? आई डोंट नो कैसे लोग आते। देन ही टोल्ड मी कि सुरेंद्र दो तरह के बच्चे आते हैं इधर सीडीएस में। एक होते हैं कि जो जिनको सब कुछ आता है एंड दे लुक लाइक दे आर रिकमेंडेड प्रीवियसली। और एक आते हैं जिनको देख के मुझे लगता है कि इनको रिकमेंड किसने किया, वो Mhm. तू है। तो आई स्टार्टेड स्माइलिंग टुवर्ड्स हिम। एंड उसके बाद में हर 2 मिनट में यूज्ड टू सी हिज वॉच ऐसे करके, यू सी मी लाइक कि ये लाइक कब जाएगा ये। एंड देन एट लास्ट जब सब कुछ खत्म हुआ, एंड मैंने कभी भी मतलब जो मेरे रीजंस थे लाइफ के कि मैंने क्यों किया आर्ट्स क्यों किया ये, Mhm. क्योंकि मैंने छोड़े नहीं अपने रीजंस कभी, मैं बताता रहा कि सर दिस वाज माय रीजन ऐसे करके। आई हैड अ स्माइल। तो एट लास्ट जाने से पहले ही टोल्ड मी वन थिंग। 1.5 घंटा हो गया था, शाम हो गई थी मैम, लास्ट इंटरव्यू था मेरा। ही टोल्ड Okay. मी कि सुरेंद्र आई टेल यू वन थिंग। मैं Mhm. बोला यस सर। ही टोल्ड मी कि सुरेंद्र यू ओनली हैव वन थिंग इन योर लाइफ, दैट्स Mhm. योर कॉन्फिडेंस। नेवर Mhm. लेट एनीवन कम एंड टेक अवे योर कॉन्फिडेंस फ्रॉम यू।
तो आई जस्ट स्माइल, थैंक यू सर, मैंने बोला कि ठीक है आप चले जाओ आप। In this interview, Surinder, he literally tried to screw you up throughout the यस time, मैम। and he was drilling you over and over again. And I was really worried कि exactly उनकी intentions क्या थे, but the way it ended, I think it would have given you some sort of peace कि चलो ठीक है. At the end, it has आई come. वाज हैप्पी, आई वाज हैप्पी मैम कि चलो खत्म तो हुआ कम से कम, एंड आई वाज हैप्पी कि एट लास्ट व्हाट ही सेड, आई थॉट कि हाँ सर रिकमेंड कर देंगे इस बात पे तो कम से कम। सुरेंद्र, देर आर ऑल्सो टाइम कि जब हम बार बार एसएसपी जाते हैं तो वी ऑल्सो गेट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ इंटरव्यू, बट in the later attempt when you were getting back to back recommendation, I won't know that particular interview. I think something interesting that happened at that time. भोपाल में हुआ था मैम। फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज आफ्टर माई लाइक, बिकॉज क्या हुआ था कि जलंधर से रिकमेंड होने के बाद दिस द ग्रिलिंग वाले इंटरव्यू में आई गॉट रिकमेंडेड। उसके Mm-hmm. बाद में आई गॉट मेरिट आउट ऑल्सो, मेडिकल आउट सब कुछ हो गया। आई Mm-hmm. वेंट टू भोपाल अगेन विद नथिंग इन माई हैंड। सो आई Mm-hmm. वेंट देयर एंड साइट खत्म होते ही 10 मिनट में दे कॉल्ड मी फॉर द इंटरव्यू कि आप Okay. इंटरव्यू के लिए आ जाओ ऊपर। तो आई वेंट ऊपर इंटरव्यू के लिए, एंड व्हेन आई एंटर्ड तो ही सेड कि बैठ जाओ आप। तुम बैठा एंड ही टोल्ड मी कि व्हाट डू यू डू। तो आई Mm-hmm. टोल्ड हिम कि सर मैं बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो बोलता है कौन से बच्चों को। आई सेड कि सर एफ कैट के बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूँ, मैं एफ कैट के लिए पढ़ाता हूँ। तो ही टोल्ड मी कि तूने एफ कैट दिया है कभी लाइफ में। तो आई हैड अ स्माइल, मैंने यस सर। तो बोलता है क्या हुआ था। तो आई टोल्ड हिम आई वाज रिकमेंडेड फॉर एफ कैट एंड सीडीएस बिफोर। तो Mm-hmm. ही आस्क्ड मी वन सिंपल थिंग कि तू एकेडमी क्यों नहीं गया अभी तक। Mm-hmm. आई टोल्ड हिम अबाउट द मेरिट आउट एंड मेडिकल आउट। तूने थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे उस पे, एंड देन ही आस्क्ड मी वन सिंपल क्वेश्चन। और मैम दिस कैन बी रिलेटेड टू एसडी ऑल्सो, कि एसडी में वॉट एवर वी राइट, फॉर एग्जाम्पल मदर की क्वालिटी लिख, पेरेंट्स व्हाट माई पेरेंट्स थिंक ऑफ मी हमने लिख दिया। तो दैट्स आर मनसा, what we think from the brain. And Mm-hmm. similarly, one question came in my interview, which was, suppose Surinder, I meet your mother in the evening while walking in Mm-hmm. the garden. What will your mother tell me about you? तो Okay. आई थॉट कि दिस द सेम क्वेश्चन जो एसडी में आया था, जो मैंने Mm. एसडी में लिखे थे, मैंने वो चीजें बता दी सर को वहां पे। तो ठीक आई है. थॉट कि यहाँ से मनसा और वाचा मैच कर गए। तो देन ठीक. ही स्माइल्ड एंड टोल्ड मी कि चलो टेल मी 5 थिंग्स यू वांट योर मदर वांट टू चेंज इन यू। मैंने Mm-hmm. नॉर्मल चीजें बताई कि आई डोंट स्लीप एट टाइम, मैं Mm-hmm. खाना टाइम पे नहीं खाता, बोलता बहुत हूँ, जल्दी बिलीव कर लेता हूँ लोगों पे। तो देन ही वाज लाइक कि ठीक है, चलो टेल मी द स्पेलिंग ऑफ लेफ्टिनेंट। Mm-hmm. मैंने बोला यस सर। लाइक स्पेलिंग, आई वाज लाइक, मैं उस टाइम फंस गया, मेरे को मतलब मेरे को याद थी स्पेलिंग बट मैं कंफ्यूज हो गया। अब मैं वहां Mm-hmm. पे वो LIELEI कर रहा हूँ, एंड ही स्माइलिंग एट मी ऐसे देख के मेरे को, बोलता यू डोंट हाँ. नो द स्पेलिंग ऑफ लेफ्टिनेंट, यू लाइक यू कैन लीव। मैंने Mm-hmm. बोला सर ओनली 10 मिनट्स हैव पास बाय। बोलता नहीं नहीं, आई गॉट टू अंडरस्टैंड यू, आई गॉट टू नो यू इन दीज 10 मिनट्स। You have next 3 days completely. You can go to the different places of Bhopal and enjoy your life. Mm-hmm. I just said, okay, sir, thank you. And I came out of the SSB, came out of the interview hall. Okay. तो मैम Mm-hmm. वो 10 मिनट में खत्म हुआ था। इट वॉज वेरी स्ट्रेंज। बट Mm-hmm. सबसे ज्यादा मार्क्स भी उन्होंने दिए थे मैम इंटरव्यू में। लाइक आई गॉट 95 आउट ऑफ 200 मार्क्स एसएसबी में उस वाले अटेम्प्ट में। Okay. दिस वाज द थिंग। उसके अलावा आई टेल यू वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द जीटीओ वाला किस्सा। आई टेल यू स्मॉल थिंग Mm-hmm. कि इन माय इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। राइट नाउ, बट अच्छा। जीटीओ की भी अगर हम बात करें तो आपने जीटीओ में भी अलग अलग तरह के ग्रुप को, यस मैम। आई मीन उनके साथ आपने ऑब्स्टिकल्स करे हैं, पूरी एक्टिविटीज करे हैं जो टास्क होते हैं अपने जीटीओ में. सो मैंने हमेशा एक चीज ऑब्जर्व करी है सुरेंद्र, की जनरली लोगों को एक प्रॉब्लम होता है दैट आइदर दे ट्राई टू शो देमसेल्फ थ्रू डोमिनेटिंग अदर पीपल, यस मैम। और दे डू नॉट पार्टिसिपेट, लेट अदर परफॉर्म ऑल द टास्क. सो व्हाट पर्टिकुलरली इज योर ऑब्जर्वेशन कि जीटीओ के अंदर क्या काफी रिलेवेंस रखता है while performing the task which showcase your positive side to the GTO. यस मैम। मैम जीटीयू में दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि जो भी पीजीटी करते हैं फॉर एग्जांपल, तो Mm-hmm. पीजीटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क इन जीटीयू। तो वहां Okay. पे जो मैंने सीखा मैम लेटर अटेम्प्ट में, लाइक स्टार्टिंग में मैंने बहुत गलतियां करी थी, दैट आई टू रन इन द मिडिल, बिना Mm-hmm. सोची समझी कुछ भी किए हुए। जैसे पहले तो छीनो किसी से रस्सी बल्ली पट्टा, एंड देन रन इन द मिडिल, एंड देन यू डोंट नो कि करना क्या है आगे जाके, एंड Mm-hmm. देन जीटीयू आल्सो नोस कि आप क्या कर रहे हो अभी तक। तो ही Okay. पॉइंट्स यू आउट। बट अभी दैट आई रियलाइज कि आप कहीं पे भी खड़े हो किसी भी पिच पे, वहां से छक्का मारना आना चाहिए आपको। तो व्हाट आई यूज टू डू कि मान लीजिए अभी मैं भोपाल गया था, तो वहां Mm-hmm. पे माई ग्रुप हैड अ लॉट ऑफ लास्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे। Mm-hmm. एंड तो वहां पे दे वाज वेरी डेस्परेट कि आई वांट टू गो इन द मिडिल, आई वांट टू गो फर्स्ट। तो दे डिडंट अलाउ मी टू गो इन द मिडिल ऑफ द पीजीटी ऑब्स्टिकल ओनली। तो मैं Mm-hmm. साइड में खड़ा था ऑब्वियसली स्टार्ट लाइन पे, एंड आई यूज टू गिव द आइडियाज फ्रॉम देयर ओनली कि Okay. जेंटलमैन वी कैन डू दैट, वी कैन टाई द रोप हेयर। एंड कोई भी टेक्निकल टर्म्स कभी यूज नहीं करता जीटीओ में। फॉर एग्जांपल कैंटिलीवर हो गया, फलक्रम हो गया, तो Mm-hmm. एक तो मेरे को इतनी आती भी नहीं है, प्लस मैं यूज भी नहीं करता। आई जस्ट टेक की पुट द प्लैंक बिलो द रॉड या अबव द रॉड, ऐसे Okay. करके। एंड देन आई टोल्ड हिम, एंड व्हेनेवर द जीटीओ यूज्ड टू आस्क
कि हम्म, जेंटलमैन व्हाट्स योर प्लान, तो आई यूज टू बी रेडी कि हम्म, मैं बताऊंगा प्लान, पर चाहे मैं कहीं भी खड़ा हूँ, चाहे हम्म, प्लान बन रहा है आखिर में मैं खड़ा हूँ स्टार्टिंग में, आई यूज टू टेल देम वहीं से कि सर वी आर मेकिंग अ प्लान टू मूव फॉरवर्ड, विल टाई द रोप हेयर, पुट द बल्ली हेयर, ऐसे करके। तो वहां से हम लोग निकल गए आगे करके। तो ठीक है। इसमें क्या हुआ मैम कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली नहीं कुछ भी करने का। लाइक हम्म, मैंने फट्टा हाथ में भी नहीं लिया पूरे जीटीओ में, मैं बस चल रहा था, वो मेरे को चला रहे थे, मैं चल रहा था, मैं आइडिया दे रहा था। तो हम्म, व्हेन द कमांड टास्क केम, तो हम्म, आई वाज कॉल्ड द फर्स्ट वन एंड आई गॉट द बॉम्ब टास्क वहां पे। ओके। तो जीटीओ जब कमांड टास्क शुरू हुआ तो मैंने एक साइड से बंदे को घुसाया, बॉम्ब लेके, सेकंड साइड से निकाला उसको। अब थर्ड साइड से निकलना था मैं और मेरे मेरे हेल्पर को और मेरे को। हम्म, एंड जीटीओ सर ने बोला कि सुरेंद्र डू वन थिंग कमांडर, take the plank with you, take the bully with you, take the रस्सी with you, take the rod with you, and you will do everything on your own. The helper won't do anything. तो फिर हम्म, मैं यहाँ पे एक हाथ में बल्ली फंसा के, एक हाथ में पट्टा फंसा के, बीच पैरों के बीच में वो रॉड फंसा के रस्सी बांध रहा हूँ वहां पे। तो हम्म, व्हाट आई थॉट कि सर ने उधर दिखा होगा पीजीटी में कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ बेसिकली, बट आई हैड अ लॉट ऑफ आइडियाज। तो हम्म, उस आइडियाज के बेसिस पे ही गेव मी दिस हार्ड टास्क इन कमांड टास्क, एंड इवेंचुअली ही वांट टू टेस्ट मी कि मैं काम भी कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। ओके। तो जो मुझे को समझ में आया पीजीटी में कि आप कहीं भी खड़े हो, डजेंट मैटर, हम्म, आप स्टार्टिंग में हो एंड में हो, अगर आप स्टार्टिंग में हो तो बेस्ट है कि आप एग्जीक्यूट कर दो प्लान को। आपका हम्म, आइडिया आपको एग्जीक्यूट नहीं हो पाया तो एक कान खुला रखो, जो बोल रहे हैं उनको सुन के एग्जीक्यूट कर दो। अगर ठीक आप है। बीच में फंस गए हो तब भी आइडिया दे दो, अगर हम्म, स्टार्ट में फंस गए तब भी यू कैन गिव आइडिया, यू कांट डू एनीथिंग एल्स, एंड इट ओके। विल हेल्प यू। जीटीओ नोज की सबको पास अपॉर्चुनिटी नहीं है आगे बढ़ने की, बट हम्म, जहाँ पे आप खड़े हो वहां से आप आइडिया दे रहे हो, आप हेल्प कर रहे हो, तो इट विल हेल्प यू। प्लस राइट। में स्मॉल स्मॉल थिंग्स जैसे कि somebody is walking across the plank, so you can give him a hand कि a हम्म, gentleman take my hand, come this side, or हम्म, just balance yourself finally, तो these small things helps कि जेस्चर। जीटीओ नोट कि आप अंदर हो, उधर you are focusing on the task, you are हम्म, not out of the group suddenly, राइट। and so this happened मैम वहाँ पे। हम्म, एंड that's other thing कि जो जीटीओ में आई थिंक फॉर एग्जांपल वन मोर थिंग अबाउट लेक्चरेट आल्सो, कि हम्म, लेक्चर में पीपल प्रिपेयर अ लॉट कि आई हैव प्रिपेयर्ड 20 टॉपिक्स फॉर द लेक्चरेट, ये वो। मैंने हम्म, मैम आज तक कहीं भी हार्ड टॉपिक पे बोला नहीं। आई हैव स्पोकन अबाउट माय फ्रेंड, माय स्कूल, माय फेवरेट बुक, माय ओके। फेवरेट मूवी। तो आई हम्म, हैव स्पोकन ऑन दीज टॉपिक आल्सो, इन टॉपिक पे भी आई गॉट रिकमेंडेड एवरी टाइम। So ओके। what I think कि if you can like easy topic लेके भी if you can make it a very hard topic by giving examples, for example you can हम्म, make a easy topic a very high level topic by giving good examples. For राइट। example जैसे कि मेरा फेवरेट टॉपिक था एक बार माय मूवी, तो आई हम्म, टुक थ्री इडियट्स उसमें। अब थ्री हम्म, इडियट्स में मैंने इतने सारे एग्जांपल दे दिए अबाउट द सुसाइड्स इन कोटा आल्सो, हम्म, अबाउट टेकिंग योर ओन पाथ इन लाइफ एंड ये सब वो सब। तो these things help me to make the topic very high level. So ओके। that way also, if you don't prepare a lot in lecturate, you can navigate your way through. तो राइट। आई थिंक कि जो मेन मेन चीजें हैं लाइक जीडी हो गया, ये सब हो गया, इस पे वी नीड टू फोकस मोर। एंड बाकी lecturate और ये सब, लाइक इफ यू डोंट प्रिपेयर अ लॉट ऑल्सो, यू कैन नेविगेट थ्रू इफ यू कैन स्पीक वेल। द मेन थिंग वहां पे है कि यू नीड टू स्पीक फॉर 3 मिनट्स। बाकी द जीटीओ अंडरस्टैंड्स कि हाँ बंदे में करेज तो है दैट ही स्पीकिंग वेल देयर फॉर 3 मिनट्स। लेक्चरेट के अंदर जैसे कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, आप किस तरह से आप यस नरेट मैम। कर रहे हो, किस तरह से आप कैप्टिवेटिंग वर्ड्स का यूज कर रहे हो, या उसको कैसे एंगेजिंग यस बना रहे मैम। हो 3 मिनट के लिए। आपने रिटर्न क्लियर करा है तो इट इज वेरी एविडेंट कि इसको नॉलेज तो। यस मैम। सो ही हैज आल्सो गॉट स्क्रीनिंग। तो दीज टू फैक्टर्स रिवील अ लॉट अबाउट एनी पर्सन who is going to SSP, or I mean he has got screening also, cleared the written of CDS जो UPSC conduct कराता है, as well as for AFCAT if you have done that. So, I mean, then it doesn't really matter. But if you're going for a direct entry, if somebody is watching who is going for direct entry, the competition is really high. So you can यस prep up the neighboring countries and basic चीजें नक्सलाइट के ऊपर आप चेकआउट कर सकते हो, कश्मीर के ऊपर। I mean, there will be a very minute topic you will get anywhere. Just randomly go through them. If you are willing to speak on that, well and good. And if not, you can choose any topic, but be यस comfortable मैम। with your own thing that you have selected. एक और चीज मुझे जाननी है सुरेंद्र, जब भी हम मेडिकल्स पे बात करते हैं, it becomes really very tricky. People generally underestimate the medical criterias, and when यस it मैम। comes to Air Force, it is a bit hard. There are time I've seen a lot of candidate getting medical out, especially for Air Force, and there are times, very little TR you get, and you have to juggle a lot. Can you share few of the medical TRs that you have seen people facing it difficulty, but yet very important, and if somebody know prior, it might help them in their medical journey ahead. यस मैम। फॉर एग्जांपल एक तो बेसिक टीआर है मैम की, ओवरवेट का टीआर मिलता है, बहुत बेसिक होता है। इफ Okay. यू थिंक योर वेट इज नॉट लाइक अंडर द लिमिट,
तो आप हम्म, स्टार्टिंग से ही मेहनत करो कि वो लिमिट में रहे। ओके। बहुत लोग आते हैं कि हम लोग अभी ओवरवेट है, कोई बात नहीं, हम एक महीने में कम कर लेंगे, और हो हम्म, भी जाता है। बट आई हम्म, हैव सीन पीपल की जिन्होंने एक महीने में वेट कम कर लिया है अपना, बट उसकी वजह से उनका बीपी शूट कर जाता है हम्म, अननेसेसरली। बीपी हम्म, शूट होता है। एक बिलरुबिन होता है ब्लड में, दैट हम्म, ऑल्सो शूट्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो आई सीन अ कैंडिडेट जो जिसने अपना वेट 15 किलो तक कम कर लिया एक महीने में। ही हम्म, केम फॉर द मेडिकल्स एएमबी के अंदर। ही हैड ओनली 1 टीआर अपना, इसका क्या बोलते हैं, ओवरवेट का। बट हम्म, वहां पे जब ब्लड ब्लड चेक हुआ तो उसमें उसका बिलरुबिन भी निकल गया। तो उस चक्कर में ही गॉट सम अदर टीआर ऑल्सो। तो ओके। उस चक्कर में उसको आरएम पे जाना पड़ा। तो फिर इट इज फाइन कि अगर आपको वेट अगर लूज करना है तो पहले से लूज करो। सडन लूज करने में बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे हो सकती है। वन थिंग इज दिस। सेकेंड थिंग मैम, स्पोर्ट्स इंजरीज बहुत होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरी ही उंगलियां हैं, तो माई मिडिल फिंगर इज बिट ऐसा बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, बिकॉज मेरे को वॉलीबॉल से लगी हुई है। तो अगर आप कुछ स्पोर्ट्स इंजरी है तो उसी टाइम उसको क्योर करा लो। डोंट लाइक टेक इट लाइक उसको लंबे तक खींच के मत रखो, बिकॉज दीज थिंग्स कैन हैम्पर योर लाइक मेडिकल लॉट। आईसाइट पे बात फॉर करते हैं। एग्जाम्पल आई आईसाइट साइट पे। यस राइट। मैम। जी। क्योंकि आईसाइट के रिगार्डिंग इतना ज्यादा मिथ है कि विद स्पेक्स यू कैन नॉट जॉइन आर्मी। यू हैव सीन अ लॉट यस ऑफ मेडिकल एंड यू हैव सीन योर फ्रेंड्स आल्सो। सो व्हाट अबाउट स्पेक्स इफ पीपल आर हैविंग स्पेक्स? मैम, स्पेक्स में भी ऑल्सो यू कैन जॉइन आर्मी एंड एयरफोर्स बोथ। लाइक हम्म, आर्मी में आई गेस दे हैव अ 2.5, -2.5 से लेकर +2.5 का रेंज में होता है, सो यू कैन जॉइन। एंड एयरफोर्स में भी ग्राउंड ड्यूटी के लिए यू कैन जॉइन ऑब्वियसली। दे राइट, हैव अ रेंज फ्रॉम -3.5 टिल +3.5 इन द ग्राउंड ड्यूटी इटसेल्फ। तो राइट। उसमें देयर इज नो इशू। प्लस फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन एग्जांपल। व्हेन आई वेंट फॉर माय एफकेट मेडिकल्स लास्ट टाइम, तो वहां पे एक बच्चा था एनडीए का, उसने स्पेक्स नहीं पहने थे कभी भी। बट वहां जाके उसको -0.5 का नंबर बता दिया गया फर्स्ट मेडिकल्स में, एंड ही वाज देयर फॉर द फ्लाइंग ब्रांच। तो देन ही वेंट टू दिस वन थिंग कॉल्ड प्रेक्षा इन साकेत, न्यू दिल्ली में राइट, ही है। राइट। तो प्रेक्षा योगा इंस्टीट्यूट है, तो वो वहाँ पे आई का योगा कराते हैं बेसिकली। तो आप डेली दे टेक सम चार्ज एंड योगा होता है वहाँ पे आई का। तो उसके बेसिस पे ही वाज एबल टू लाइक रिड्यूस हिज पावर फ्रॉम 0.5 टिल 0 अगेन। तो ओके, नेक्स्ट मंथ व्हेन ही केम फॉर द री मेडिकल्स ही वाज फ्लाइंग फिट, एंड ओके, करेंटली इज इन एनडीए। तो ओके, दैट वे ऑल्सो अगर आपका कम नंबर है तो यू कैन लाइक गेट योर नंबर अगेन फाइन थ्रू दीज थिंग्स ऑल्सो। एंड उसके अलावा हम लेसिक कराते हैं, तो उसमें दिक्कत वो है कि आप 1 साल तक देन यू कांट अप्लाई फॉर डिफेंस सर्विसेज। तो 1 साल का आपको वेटिंग टाइम देना पड़ेगा उसमें। लेसिक से भी नंबर ठीक हो जाता है बेसिकली। ओके। एंड उसके अलावा मैम, वन मोर थिंग अबाउट एयरफोर्स का मेडिकल आई टेल यू। देवर लॉट ऑफ पीपल यूज टू लिफ्ट वेट। तो जब आप वेट लिफ्ट करते हो, वेट लिफ्टिंग जब पावर लिफ्टिंग करते हो जिम के अंदर, तो आपके बैक पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है। तो ओके। जितने लोग मेरे साथ आए थे एयरफोर्स मेडिकल्स के लिए, तो एयरफोर्स में देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पाइन का एक्सरे, जो कि आर्मी और नेवी में नहीं होता। तो स्पाइन के एक्सरे में दे सी योर स्पाइन अच्छे से। तो उसमें हल्का फुल्का भी थोड़ा डेविएशन आता है तो दे गेट अ टीआर, एंड दैट्स अ परमानेंट रिजेक्शन। वो ठीक नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल पीपल गॉट एलएसटीवी, पीपल गॉट लंबर स्पॉन्डिलाइसिस। तो ये छोटी मोटी चीजें, अगर हल्का सा भी आपका वो थोड़ा साइड हो गया है, आपका जो भी हड्डी होता है वहां से, तो उसमें यू गेट अ टीआर। तो अगर कोई पावर लिफ्ट कर रहा है तो आई एडवाइस कि अभी के लिए छोड़ दो कम से कम। डिफेंस सर्विस के बाद में जो आपका मन हो तब कर लें आप, पर अभी ना करें मैम। एयरफोर्स में it like hampers a lot your this medical situation. One thing that I can These- recall is hemoglobin, especially in females. It is Yes, one ma'am. of the biggest, problem they face. Then you can have beetroot and so many things. Start intaking those things before your medicals. I mean, बहुत ज्यादा कॉमन है गर्ल्स में कि उनको इसमें टीआर मिलना. हीमोग्लोबिन इज समथिंग आई थिंक यू शुड डेफिनेटली पे अटेंशन. Surinder, we have come to an end, and it was such a lovely conversation. We have talked about a lot of different aspects of your journey. But one thing that is, keep on striking my head is one recommendation, then second, then you have seen merit out, medical out, and then now recently the merit has come, you're joining OTA. Yes, ma'am. What was the reaction of your family? Because they are with you throughout the journey. उन्होंने सब देखा है, good Yes, ma'am. time, bad time, and your father is himself is in Navy, so it must be a proud feeling for them. But what was your reaction? What was their reaction when they get to know about your first recommendation? मैम, फर्स्ट रिकमेंडेशन they were really happy. They Mhm. didn't expect कि I'll get recommended, because मैं बता के नहीं आया था घर पे कि मैं एसएसबी के लिए जा रहा हूँ। तो आई स्किप्ड माय प्रीलिम्स एंड आई वेंट फॉर माय एसएसबी। तो Mhm. जिस दिन मैं रिकमेंड होने वाला था, तो नॉर्मली मैं कॉन्फ्रेंस आउट होकर 2:30 बजे निकल जाता हूँ। Mhm. तो माय पेरेंट्स कॉल्ड मी एट अराउंड 3 और 4। मेरा फोन बंद आ रहा था, बेसिकली आई वाज डूइंग द डॉक्यूमेंटेशन। तो दे कॉल्ड माय बेस्ट फ्रेंड तुषार अग्रवाल। तो Mhm. तुषार टोल्ड हिम कि सर, अंकल जी, सुरेंद्र का फोन नहीं लग रहा है, मतलब आपका बेटा अफसर बन गया है। माय Mhm. पेरेंट्स हैड द न्यूज बिफोर आई कॉल्ड देम। तो Okay. मैं रात को 9 बजे निकला सेंटर से, देहरादून से। आई कॉल्ड देम एंड दे वर लाइक कि वी न्यू ऑलरेडी, बट दे Mhm. वर रियली हैप्पी।
and I never cried in my recommendation. I'm starting 1 2 attempts, but जो थर्ड रिकमेंडेशन था मेरा भोपाल वाला, हम्म बिकॉज उससे पहले वो मेडिकल आउट मेरिट आउट सब कुछ हो चुका था. सो आई हम्म वाज अंडर अ वेरी लाइक वो था कि कुछ था नहीं मेरे पास. आई हैड नथिंग टू लूज. आई वाज बैक टू ग्राउंड जीरो. तो उस दिन व्हेन आई वाज रिकमेंडेड इन भोपाल, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई क्राइड. So I took the phone. I called my mother firstly. तो वो ट्रैवल कर रहे थे मैम, जोधपुर से जयपुर जा रहे थे वो. तो पापा मम्मी साथ में थे बस में. आई कॉल्ड देम, आई सेड कि मम्मी हो गया. मैंने जैसे ये बोला और मैं रो दिया वहां पे. और सबके सामने 6 लोग थे हम लोग वहां पे. एंड वन ऑफ द फ्रेशर्स केम टू मी, बोलते हैं भैया आप तो 3 बार हो चुके हो, आप क्यों रो रहे हो? मतलब यू डोंट नो द स्टोरी बिहाइंड दिस, बहुत कुछ देख के आया हूँ मैं. तो ये ओके दिस वाज द रिएक्शन मैम. फिर बाकी तो अभी तो दे आर यूज टू इट. अभी तो दे आर लाइक कि ओके used हो to गया it. ना मेडिकल. अब दे आर लाइक कि मेडिकल्स कब है. ऑब्वियसली 3 4 5 रिकमेंडेशन के बाद एनी पेरेंट विल से ओके या एसएसपी जा रहे हो ठीक है बेटा कॉल अस आफ्टर रिकमेंडेशन. Surendra, we have come to an end, and it was really a wonderful conversation. Not just because we Yes, have covered written, but इसमें के भी हमने काफी सारे aspect को discuss किया. And आपने, I am really appreciating it that you have literally prepared for it. And I could really sense जब हम stories पे discussion कर रहे थे TAT and WAT and SRT and interview. So I'm sure yes. आपकी वीडियो से काफी सारे लोगों को हेल्प मिलेगी. Thank you so much for joining me. And soon you're going to become an officer. See you soon in that Thank you all so in uniform. Thank you so much for joining. Thank you so much, ma'am. Have a nice day. Thanks for watching the video, and let me know in the comment section below if you have any doubts and what kind of videos you want in our upcoming episodes of Defense Roger. And don't forget to subscribe. It gives us a moral support to bring better content and the SSOs and the candidates in our upcoming episodes. Jai Hind.